Hi guys, it's Dr. Zui here, and this is the 8th session. Welcome to the Legit Talks. I am a bit thrilled now because the personality I already gave his introduction yesterday, and hope you all have seen the story on Instagram. So basically, this person is a versatile man. He has done a lot of things in his life, and the list is like it goes on and on. I cannot stop that. सो बेसिकली मैं सर को जानती हूँ काफ़ी टाइम से एंड ही वॉज माई सीनियर इन एस पी डी सी व्हेन आई वॉज डूइंग माई बी डी एस एंड ही वॉज लाइक ही इज़ माई मेंटर नाउ एंड बेसिकली उनका स्टोरी ना काफ़ी it's a roller coaster ride, so I am hoping that you also enjoy this roller coaster ride, and I am obviously going to enjoy that, and I'm really glad that he has accepted my request to come on this platform and share his story, and I am really excited. So I think it's time that we should be taking him live right now. So I'm going to join you, sir. I'm going to just send you an invite, just accept it. Hello. Hello, sir. Welcome to the Legit Talk, sir. Thank you so much. It was good to be here. How are you doing? Wow, sir. I'm fine, sir. Your clinic looks amazing, sir. Thank you. अरे सेटअप ऐसा कोई बड़ा Yeah, I am basically very excited to know your story now and let these people know what actually Dr. Ashish Dambare is. So, are you ready, sir? Yeah, I'm quite nervous, but let's see. Let's go to it. There is no need to be nervous, sir. It's your platform. You're going to win this game for sure. Yes. Sure. Yes. Okay. So guys, basically जो भी join किए हैं हमारा first जो पैरा रहेगा बोलने का that will be really about the COVID situation और उसमें होने वाले जो भी precautions and all the setup जो arrange करना चाहिए लोगों ने. It is going to be about that. So sir, first of all, tell us something about yourself. Like who is Dr. Ashish Dambare? See, I'm not extraordinary guy. I'm just a regular dentist. I have completed my master's in periodontics and implantology. I'm basically a gum surgeon, yes sir. And I have my own practice in Varda city. I go with on the consultation. Otherwise, I haven't joined any academics or college yet, but I have in the consultation and clinical practice only. It has been since 2013, I guess. That's it. Wow, it's बाकी been a जो long भी है time, वो तो sir. इंटरव्यू में आके पड़ेगा. Yeah. Yes. So basically, how is your family and everyone doing in this COVID situation? Everybody is very much fine. First class. सब बढ़िया. एकदम first class. Very happy. Awesome. कोई And how किसी is को the clinic कोई going? problem होने. Clinic is fine. Yeah, pandemic had hurt. वैसे तो सारे clinics पे या जो भी फर्क पड़ा है, because there is a thought of fear and all those things. But yeah, it's okay. Even it's fine now, right now. Yeah, so After it's second going wave. very well now. Yes, definitely. Awesome. So how are you working? Can you tell us your schedule? How do you work in the clinic? Right now, my schedule is regular one, what every practitioner has. Get up in the morning, the early OPD, morning OPD. During the first phase, like last year, I actually restricted the time being on the clinic. But once the vaccine has come and during this 2021, the practice has been resumed to regular thing. Like regular timing has been there, like 10 a.m. to 2 p.m. or 3 p.m. depending upon the cases, because right now what the lockdown has been shifting from this phase to this phase and this scheme and that scheme. So many times the people don't, not able to come in the evening time. So everybody is preferring to come in the morning hours or the afternoon hours. So we extend the morning or afternoon time. And the evening time is like okay, patient आया तो OPD करेंगे या फिर appointment देंगे या फिर sometimes I do video consultation, all those things we do. Yeah. Okay, so daily कितना patients आता है? Like कितना हो जाता है? अब ये तो ऐसा बोल तो सकते नहीं, किसी दिन बहुत आएंगे या फिर किसी को कम आएंगे. But to be very frank, I'm not a bulk OPD guy. I don't like bulk OPD. I don't want my people 15, 16 people or many number of people are sitting in my reception and waiting for their turn, because
we know dentistry is like, if we do the treatment, actually the operating procedure, it takes time, maybe 30 minutes or 20 1 hour. So I keep the appointment system on my clinic. Okay, nice. So it's like all work, work, work. बहुत काम. Amazing. एकदम खाली तो एकदम खाली, कुछ काम नहीं है, और एक बिजी तो एकदम बिजी. Okay, तो वही है यार. ऐसा हुआ है कि कोविड सिचुएशन की वजह से द रिस्क वर्किंग इन द क्लिनिक हैज इंक्रीज्ड. So what a clinic should follow, and in what situation the patient should go to the clinic, and when they visit to the clinic, what things are to be followed and what precautions to be taken by the patients when they visit. So can you tell us about that? This is a very common question I get since the pandemic have arrived. And you see, as a human race, we are fighting against the enemy which is invisible. Right? We can't see a COVID virus or like that. जो हम जिस चीज से लड़ रहे हैं वो दिखता ही नहीं है. But it has been created a chaos in entire the globe. So yes, the protocol has been changed. Some things which we were thinking that were not that much important, that has become eventually too much important in the pandemic. So I take some time on the question, but what I see, there are two different perspective, like patient's perspective and the doctor's perspective, I must say. If I say in terms of patient's perspective, what a patient should do, what he's supposed to do, and what precaution he should take. See, the thing is, I always believe in the appointment system. Whenever you visit any clinic, it's not about dental clinic or any medical clinic or any clinic. It takes time. You wait into the line or wait into the reception, then you note your name, then the patients will roll out. जब तुम्हारा नंबर आएगा, फिर you go into it, then फिर वहाँ पे होगा. No, that much time. अब उसमें कितना भी टाइम लग सकता है, डिपेंड होगा मतलब क्लिनिक टू क्लिनिक. ओके, द मेडिकल प्रैक्टिस रही तो थोड़ा ज्यादा नंबर रह सकता है, या कुछ डेंटल में बड़ी ओपीडी होती है. द पॉइंट इज, अगर हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं किसी क्लिनिक में, राइट, तो एक हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है. हमें पता है कि अगर किसी ने मुझे 2 बजे का टाइम दिया है, दैट मीन्स सुबह से जब वो 10 बजे से खुला तो 10 से 2 से बस टाइम नहीं है. So why to go into that crowd and create a chaos? So I always advise a patient, whether any patient, I always advise to book your appointment and try to go it. Many times what happens when you call the patient call the clinic, they see कि उनके पास किसी इसके यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं होता है, या फिर रिसेप्शनिस्ट ढंग से बात नहीं करती. ये चीज हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये नहीं होगा, लेकिन ठीक है, अगर वो चीज को हम लोग अगर एक फोन करेगा, दूसरा फोन करेगा, तीसरा फोन करेगा, तो वो शायद वो डॉक्टर को या वो मैनेजमेंट को, जो भी वो मैनेज करता है, उसको समझेगा कि अपॉइंटमेंट सिस्टम हमने रखनी चाहिए. इट इज सपोज टू बी दैट वे, दैट इज फॉर सेफ फॉर पेशेंट्स ऑल्सो एंड डॉक्टर्स ऑल्सो. क्योंकि हम लोग चलो मान के चलो कि कोई अगर डॉक्टर ओपीडी में बैठा है, लेकिन आजू बाजू जो लोग बैठे हैं उसकी गारंटी कैसे दें? हम डॉक्टर की गारंटी देंगे, डॉक्टर की स्टाफ की गारंटी देंगे, क्लिनिक की गारंटी देंगे, बट हम बाकी लोगों की गारंटी नहीं दे सकते. तो व्हाई टू क्रिएट अ chaos? So one thing I like that thing कि ये चीज पेशेंट्स ने मैंडेटरीली करना चाहिए कि अपॉइंटमेंट सिस्टम की आदत डाले. इंडिया में नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. या फिर मेट्रो सिटी में दिखता है, छोटे सिटी में लाइक स्मॉलर सिटी और मिड कैप सिटी, तो डोंट फाइट इट. सेकंड ऑफ थिंग, if you have gone, you have occurred, if you had history of the COVID, or if you have the history of the vaccination, please do share things with the doctors कि कोविड होके गया है, इस टाइम पे हुआ था, इस टाइम पे ऐसा था. अब ये चीजें कभी कभी कैसा होता है कि फोन पे भी हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, लाइक एक बार ऐसा हो गया था कि एक पेशेंट मेरे को कॉल करता है, फिर मुझे बोलता है कि सर मुझे अभी 10 दिन पहले कोविड होके गया था, तो इज इट सेफ टू. अब देखो, अगर मैं फोन पे उसे एक्सप्लेन कर दूं, राइट, तो ही अंडरस्टैंड्स, राइट. या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग वहां से प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या कोई और आके प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट करके लेके जाएगा, एंड देन मेडिसिनल ट्रीटमेंट दैट कैन बी डन. So it is always better to share this thing. Second of thing, when patient give history of he has done the single vaccine or double vaccine, if in a minute, entire environment has been changed. The confidence build up in the practitioners and the staff and all those things. Because see, we are doctors, we are human too. हमें भी उतना ही डर है जैसा नॉर्मल पीपल को है. और ये हर किसी के बारे में अलाउड है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डेंटिस्ट्री की बात हो रही है. हर कोई भी मेडिकल फील्ड का हो जाएगा, उस जहां पे क्राउड आ सकता है, क्योंकि वही खुला है और कुछ खुला नहीं, तो वहां पे वो रिस्क रहती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम होना चाहिए.
और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, मान के चलो कि जैसे कोई कुछ क्लिनिक में मैंने देखा कि मैं जस्ट विजिट किया था, तो मुझे ऐसा दिखा कि वहां पे जो स्टर्लियम है वो नहीं रखा था, राइट, वो खत्म हो गया होगा, और बॉटल है पर खाली है, या वो फूड कंट्रोल का जो भी रहता है वो खाली हो जाएगा. यू शुड बी एड्रेस टू द मैनेजमेंट रिसेप्शनिस्ट और अ डॉक्टर अबाउट इट. Okay, Yeah. because that is for the safety of everyone, because everybody will be safe, to that the safety quotient will be raised. Now let's me talk about the in doctor's perspective. डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए ये मुझे नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि डॉक्टर्स आर वेरी मच दैट थिंग दैट दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. बट स्टिल आई मतलब ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी व्हेन वी हैव अ डिस्कशन अमंग द डॉक्टर्स, we ask doctors to keep the OPD, don't do the OPD in a like bulk OPD, like for example, that I have 4-5 appointments currently right now at 10 o'clock or 11 o'clock, and if a new patient came and I've already told him कि नहीं अभी नहीं आएगा ना, 2 बजे आना है या 1 बजे आना है, ये इतने टाइम लगेगा, इसके बाद आओ, then he leaves. It is always better, no, for the doctors also. Yes. ये एक बहुत बड़ी चीज होती है. सेकंड ऑफ ऑल, ये जो मैंने वैक्सीनेशन का हिस्ट्री पेशेंट्स के बारे में बताया कि पेशेंट ने बताना चाहिए, वैसे डॉक्टर्स ने भी पूछना चाहिए. और उसके साथ मुझे ये लगता है कि कभी कभी डॉक्टर्स का बोलना या डॉक्टर का टोकना, आई मस्ट यूज दिस वर्ड, बिकॉज उसका टोकना या उसको बोलना या उस चीज को पॉइंट आउट करना कभी कभी पेशेंट्स को प्रमोट करता है वैक्सीन लेने के लिए. राइट नाउ हर कोई ज्ञानी हुआ है, वो व्हाट्सएप ने सबको पागल करके रखा है. अचानक से वो मैसेज आ जाता है कि वैक्सीन इज नॉट गुड, साइड इफेक्ट एंड ब्ला ब्ला एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड डॉक्टर्स वर लाइक, अब हम हर किसी को कहाँ बता सकते हैं. बट व्हेन पेशेंट कम इनटू ए क्लिनिक, यू ट्राई टू टेक द वैक्सीनेशन. बहुत बार ऐसा होता है, जस्ट आई एम गिव यू एग्जांपल. एक पेशेंट आया था मेरे पास, ही वाज लाइक एंटी सिस्टम, दैट काइंड ऑफ गाय, एंड आस्क्ड हिम कि भाई वैक्सीन लिया है क्या. तो हिज टोन वाज लाइक, वैक्सीन है ही कहा, क्योंकि 18 to 45 तक वैक्सीन का स्लॉट अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन अवेलेबल. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बोला ठीक है, ओके. घर वालों को दिया, मम्मी पापा को. तो ही वाज लाइक, नो, फिर क्यों नहीं दिया. व्हेन यू नो दैट 45 अबव वैक्सीनेशन हैज बीन गोइंग ऑन, you must take na. You can't give an excuse bloody every single time. Many time patients come and I ask them कि तुम्हारे घर वालों ने लिया है, मम्मी पापा ने. हम तो पूछते हैं ना, ऐसे बातों में हो जाता है. Many time नहीं, वो लेंगे नहीं, ये हमारा काम है कि उन लोगों का वैक्सीनेशन हो, because they are very much prone. Because sometimes I still get some experience with my friend circle on relative and all those things. ये चला गया, वो serious है, वो ICU में and all those things. It's all about sometimes it's about negligence. Right? So, see, system is working the way it is working. And you must know, everyone must know, vaccine is the only cure for the COVID pandemic. That's it, period. Israel ने 98% vaccination किया, that become face mask, non face mask country. Even US is opening, Germany is opening, Europe is opening, Australia has been open, New Zealand has been open, Canada is opening. Many countries has been opening. और हमारा वही चल रहा है, क्योंकि हमको फॉलो ही नहीं करना है. इफ यू आर बीन कॉल्ड, प्लीज टू गेट द वैक्सीन. एंड यू मस्ट रिमेंबर इन दिस पैंडेमिक व्हाट यू हैव बीन टॉट, द सेंटर ऑफ योर लाइफ इज यू. हम खुद एक सेंटर है, और उसके बाद में हमारी फैमिली आती है, फिर बाद में वो फेरी आती रहेगी, फिर प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, या ये है, ऐसा वैसा, ऑल दोस रिलेटिव्स एंड ऑल दोस थिंग्स. लेकिन अगर तुम सेफ हो, तुम्हारी फैमिली सेफ है, तो इवेंचुअली, एंड एवरीबॉडी थिंक लाइक दैट, so eventually entire country will fill in that context that I mean, right? So that is the thing what I think about the pandemic situation. matlab it's really like it should be mandatory, and it should be mandatorily given to the people about knowledge about this ki what measures to be followed when you are visiting to the clinic. It's not only doctor's responsibility to follow all of that, but जब patient जाता है तो you shouldn't be like अगे चले गए और बैठ गए सीधा डेंटल चेयर पे. You just have to like use sterilium, go in a proper way, don't stand in the public. And if you're coming from outside, you just take precautions when you enter, because doctor is also a human, right? If he is getting affected by any patient, then it's no use, right? Okay, so sir, one of my friends, she asked a question. She says that ask him about mucormycosis, the post problem
after the COVID. So Okay. how do we need to take measures on that? See, I'll give you a brief idea because I don't go into the technical thing because it is itself is a topic. But let me tell you one thing. अचानक से म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा. See, म्यूकरमाइकोसिस is a fungal infection. Okay. अचानक एक पेशेंट बैठा और म्यूकरमाइकोसिस होगा, ऐसा नहीं होता है. See, mucormycosis is not a new disease. It has been already been there. Now, what happened during the COVID, when the patient, when the vaccine haven't arrived, or if the patient is getting the COVID infection, when doctor prescribe the medicine, sometimes it has become mandatory to give some steroids to the patient. Okay, but it's a standard protocol. ऐसा नहीं कि steroid लिख दे तो खराब है. No, it's not like that. ठीक है, it's a standard protocol. But when the steroid is given to the patient, it has been given in a specific way. You cannot go into the medical shop and ask for the steroid. No. It needs a prescription. And when the prescription has been placed, every doctor explain the patient how to lower the dose. You know, like for example, I must say, if I make it simple. Like for example, if we take any medicine, antibiotic or something, we take for 3 days, 5 days, 3 times a day or 2 times a day, right? After 3 days, medicine ended, you stop the medicine. Okay? But it does not supposed to be happen with the steroid. Steroid is always reducing. If you have taken a 3 tablet on day 1, then 2 tablet, 1 tablet, then it is reduced. Okay. Now what happened is when you take the steroid, always doctor prescribes a specific dose which is safe for a human being. But sometimes a patient is already immunocompromised because of some systemic disease, like it may be diabetes or thyroid or anything like that. What happened in that case? That mucormycosis fungus that become opportunity, it becomes strong because the immunity is down, right? So that fungus or infection has become aggressive and become activated and start showing the symptoms. It's not like that वो इससे पहले था नहीं, but it was there. But once the immunity was down, then it shows its originality. Then most of the time, it actually mostly it occurs in the upper area because it involves in the sinus first of all, and it is very much visible in an X-ray, or I may say the OPG, the entire jaw has been taken in the X-ray, or the small X-ray which show me the sinus of the cavity, like here is the sinus and here is the sinus. If I take the 2 X-rays of from this side and this side, both sides, and if this side is infected, I see a clouding or whiteness, and this side look like clear because it's an air pocket, right? So that thing which is it is missing. But problem is when it's spread, it has because of immunocompromised thing, and the patient has been currently recovered from the pandemic, it becomes too much aggressive. And I'm saying it is aggressive to such an extent, it is almost similar to at the level of cancer. Because when the cancer of the upper jaw has been happening, what the surgeon do, they take out the maxilla, right? We call it hemimaxillectomy. Same thing is happening with the mucormycosis also. If this part is not, they have taken out the thing because there is no chance, because it will spread from the sinus, then it will spread to the portion of the eyeball, and even the vision is hampered, sinus is hampered, you feel pain, you feel heaviness on this side, something blocking of the nose, all the signs symptoms you can find on the Google also, or even the consult with the doctor. But I'm giving you the brief idea for the friend. So that is the thing. But ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड दिए इसीलिए हो रहा है. जो फिलहाल में कभी-कभी मैंने देखा है कि थोड़े से गलत प्रोपोगंडा भी होता है. अगेन ये व्हाट्सएप का ज्ञान फालतू. उसको तो ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. पेशेंट, कोई डॉक्टर ये नहीं सोचेगा कि पेशेंट आया ले स्टेरॉइड. ऐसा नहीं होता है. It never happens. There is particular protocol and doctors are trained that way. Okay. Even whatever happened to the patient, doctors itself feels sometimes कि नहीं ये नहीं होना चाहिए. Okay, so that is the thing. So that's the mucormycosis, like brief idea, I must say. If she's okay with it, otherwise I'll send her some data and all those. Yeah, I think you should forward me the data. I'll forward it to her. Maybe she can help to certain people who are affected by that. She also asked sir कि उसको prevention के लिए क्या करना चाहिए? How can you prevent that? Prevent that is the thing.
See, the everything what ever happened in this area during the pandemic is happening in this area. Okay, so अब जब कोविड होके गया है, मेडिसिन लेके गया है, बॉडी में डेड वायरस है, फंगल इन्फेक्शन बन रहा है, तो व्हाट विल यू डू? यू कीप दिस साइट क्लीन. इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक जो जो क्वारंटाइन पीरियड में जाते हैं उनको भी यही बोल रहे हैं. और अगर किसी को क्या नोटिसेस है, किसी को डाउट होगा तो किसी को भी फोन कर ले, वो अभी भी वो रिंगटोन में बजता है. So ये जो क्लीनलीनेस है ऑफ दिस एरिया, तो ओरो एंट्रल कॉम्प्लेक्स व्हाट वी से, ये उसके हिसाब से उस वहां पे जो क्लीनलीनेस हमें रखना है वही बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैनॉट निग्लेक्ट इट. अचानक से कोई इंफेक्शन होगा ऐसा नहीं होगा. देयर मे बी सम कैरी, सम सिस्टमिक डिसीज. यू हैव नाउ दिस पैंडेमिक हैज शोन अस कि हाउ our health can be a bigger thing than whatever we have been doing since so many times. We have been developing weapons and we have been developing this technology, that technology, but no hospital has been, advanced. Civil hospital has been not advanced, not beds, not oxygen, all those things. These are the errors. It's not. I'm not blaming anyone, right? I'm not blaming the इसने ये नहीं किया, ये system ये है या ये. No. This is the lesson for a human being. Like what can be happen, even the enemy you can't see, right? Yeah, right. That's the thing. I think everyone is happy with the information they are saying. Well said and information to the point. Thank you so much, sir. Really, it has been a help now. Thank you all. Thank you. Okay, so basically the first part or the 1/4 part of the interview or the session is already finished. It was all focused on COVID and post-COVID situation problems. So I think everybody are happy with it. So now let's start the journey question, sir. Are you ready for that? Sure. All right. Okay. I'm all ready. Okay. So tell me, let's talk about your journey now. I'm really excited to know that adventurous journey. Tell me about your UG life. UG life. मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन अंडर जो भी यूजी लाइफ हम जिसको बोलते हैं वो हर किसी को ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, राइट? मोटा हर किसी ने वही करना है. तो इसमें कुछ ज्यादा ही तीर मारा ऐसा कुछ नहीं. सो इवन और सो मैंने भी ऐसा कुछ ये नहीं किया, बट आई एम सेइंग द थिंग. सी व्हेन आई वाज आई हैव कंप्लीटेड इन माय ग्रेजुएशन इन द सावंगी अबाउट फ्रॉम 2001 बैच, एंड एट दैट टाइम व्हाटएवर वाज हैपनिंग उस टाइम के हिसाब से वो मुझे बहुत एडवेंचरस लगता था. और अब मैं उस टाइम से अगर अभी का कोई यूजी उस चीज को देखे तो बोलेगे क्या ही करते थे तुम, कुछ नहीं करा तुमने, हम देखो क्या कर रहे हो. मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ. या ऐसा भी होता है कि जैसे एवरीबडी सेज नो, लाइक एज द टाइम पासेस द पर्सन ग्रोज, वो सोचता है कि तुमने यूजी में ये किया वो किया, वो बोलता है कि हमारे यूजी में तो हमने ये कांड किया हुआ है. तो एवरीबडी so that is the thing. But I had one theory during my UG. I've told you to many students of mine. UG लाइफ का एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है, एक मोटा फॉर्मेट. ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस सिमिलर है. द बेस्ट पार्ट ऑफ UG लाइफ इज इट इज स्पॉन्सर्ड. कुछ भी होगा कि पापा को कॉल करो, मम्मी को कॉल करो, तुमको पैसे मिलेंगे, स्पॉन्सर्ड. So one thing is that. First thing. Second thing, when you enter into the UG life, everything was, it has become a very drastic change, because till the 10th, 12th, you are like supposed to be a boy or you are supposed to be a girl, but once you enter into the that UG life, you suddenly enter into the professional course. Now the professional course is very much specific. आपको कोई भी हो सकता है, मेडिकल का हो, डेंटल का हो, इंजीनियरिंग का हो, आर्किटेक्ट का हो, एनीथिंग, राइट? और उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है. अब मुझे लगता है कि अब ये पैटर्न डॉक्टर्स में होता है या ऐसा कुछ है या कोई हर कॉलेज में होता है, आई डोंट नो, बट सी द पैटर्न, द ओवरऑल पैटर्न इज फर्स्ट ईयर में सब लोग आएंगे. अब मान के चलो कि 100 की बैच है, 50 लड़कियां 50 लड़के, राइट? तो फर्स्ट ईयर में सब आएंगे. अब लड़के जो कि बॉयज है, गर्ल्स, ओके. अब लड़के जो है वो जो उनका जो टेरिटरी चल रहा है वो जो ओवरऑल 50-50 में रहेगी. स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में व्हाट एवर हैपन इज उसमें से कुछ लड़के जो रहेंगे वो लड़कियों के साथ ज्यादा बातें करने में होशियार रहेंगे, और बच्चों में मेजर जो बल्क रहेगा वो बोलेगा ये पागल है, लड़कियों में घुसा रहता है.
ठीक है, अब ये बात उधर में भी है, कुछ लड़कियां बॉयज के साथ अच्छे से उनका मतलब एक बन जाता है ग्रुप, ऐसा नहीं है कि ये गलत है या बेकार है, बट दैट्स द थिंग दैट इज सपोज टू हैपन विद ह्यूमंस, राइट? सो ये होना है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में फिर हो जाता है कुछ कुछ लोगों के कपल्स होंगे, फिर हॉस्टल पे झगड़े होंगे, ठीक है, फिर बॉयज हॉस्टल में भी झगड़े होंगे, फिर गर्ल्स हॉस्टल में भी झगड़े होंगे, अलग अलग लेवल के झगड़े चल रहे हैं या इनके आपस में भी झगड़े होंगे। बड़े बड़े ग्रुप इतने हो जाते हैं थोड़े से। तो अब सेकंड ईयर में क्या होगा? अब सेकंड ईयर में क्या होगा? अब सेकंड ईयर में होगा ये कि अब ग्रुप बनना चालू हो जाएंगे, इसका ये ग्रुप, उसका वो ग्रुप, एक 4-5 लड़की का अलग ग्रुप बन जाएगा, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड ईयर, राइट? तो सेकेंड ईयर में बस वैसा ऐसा ग्रुपिज्म चलता है, और थोड़े थोड़े ग्रुप आएंगे, फिर किसी किसी के क्लैशेस होंगे, या इसने उससे झगड़ा किया और उसमें इसमें इसलिए मैं भी उससे बात नहीं कर रहा, ये सारा सेकेंड ईयर में होगा। ठीक है, इन द मीन टाइम एग्जाम आ रही है, सबमिशन आ रहा है, टीचर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वाट लग रही है, लेकिन चूंकि अब ग्रुप बन गया है तो एक थोड़ा सपोर्टिव सिस्टम भी रहता, किसी ने बोल दिया, कुछ ने चेंगड़ कर दिया, प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीजें चलनी है। अब अपने सावंगी में एक एसपीडीसी में एक अच्छा ट्रेंड है, अपने सावंगी मेडिकल कॉलेज पर्टिकुलरली, द थर्ड ईयर बैच जो रहती है दैट ऑर्गेनाइजेस द जीएफसी, राइट? यस सर, यस यस सर। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, आई थिंक। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे ऐसा ये बैच ऐसा करे ऐसा कुछ नहीं रहता था, जो भी सीनियर मोस्ट रहती थी वही सारा करती थी। तो हमारे टाइम ऐसा था कि ये जो सेकेंड ईयर में हो रहा है वो थोड़ा सा एग्रीवेटली और थर्ड ईयर में होता था, और इवेंचुअली फिर फाइनल ईयर में आ ही जाते थे हम लोग। अब ये जो बैच में फिलहाल में ऐसा होता है कि अगर कुछ कंबाइन एक्टिविटी होती है जिसके पास तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुमको कॉलेज ही बोल दे कि जो ये बच्चे लोग हैं यही लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। इस टाइम पे जो होता है इसमें कैसा कि एक पर्टिकुलर इवेंट में जब तुम ऑर्गेनाइज हो जाते हो तो इवेंचुअली एवरीवन कम टुगेदर। फिर वो झगड़े थे या ये थे वो था, वो बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड जब होता है तो वापस एक बार अपनी बैच वापस साथ में आती है। और फिर तो फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में और कुछ नहीं होता है, वो ग्रुप वो ये सब ये कुछ नहीं होता, वो आप में सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर एग्जाम होती है और कुछ नहीं होता। और उसके आजू बाजू ही हमारी चीजें रिवॉल्व करती है। मतलब अगर मुझे किसी से बात करनी है और मुझे पता है कि इसके सिवा मेरा काम नहीं होने वाला, तो मुझे बात करनी भी पड़ेगी, भले मैंने उससे 3 साल में बात नहीं की। राइट, एक जैसे हो जाते हैं। Yeah, that's the thing. And eventually then comes the internship. फिर इंटर्नशिप में तो सब किंग है, फिर तो हमारे कॉलेज खरीद लिया। पूरे रास्ते हमारे आपका कॉलेज हमारा है, टीचर्स भी सारे हमारे पहचानते हैं, क्या करना है बताओ। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें होती है। अब इनके बीच में कुछ कांड होंगे, किसी के झगड़े होंगे, रैगिंग्स होंगे, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू इक्वेशंस बनेंगे, ये इसके साथ वो उनके साथ, बॉयज के अलग ग्रुप बनेंगे, लोकलाइट, हॉस्टलाइट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, एवरी सिंगल थिंग, इवन द एक्टिविटी व्हाट यू परफॉर्म ऑन द स्टेज, एंड वो जो जितना गैदरिंग वैदरिंग होता है, वो सारी चीजें उसमें होना, उसके आजू बाजू पूरी जिंदगी रिवॉल्व होती है एंटायर टाइम। एंड बाय द टाइम द इंटर्नशिप केम, इवेंचुअली होता है ऐसा कि 2-3 या 3-4 साल जो तुम्हारा जो ग्रुप था, 5 का ग्रुप था या 7 का ग्रुप था या 10 का ग्रुप था, धीरे धीरे होता है ऐसे कि जैसे जैसे जिसका इंटर्नशिप खत्म होगा वैसे वैसे वो इंसान छोड़ के जाता है। नाउ जो 5 लड़कियों का ग्रुप था वो 4 लड़कियों में हो गया है, या 6 लड़के लोग साथ में रहते तो वो एक जा रहा है, कोई 2 साथ में जा रहे हैं, कोई यहाँ चला गया, कोई चला गया। तो वो जो एनवायरमेंट रहता था कि जैसे वो ग्रुप बनने के बाद जो माहौल क्रिएट होता था कि इसने जोक मारा तो ये पूरा ग्रुप हंस रहा, बाकी पूरा लाइब्रेरी देख रहा है कि क्यों हंस रहे हैं लोग। वो जो शोर करने का जो मजा होता था कॉलेज टाइम पे, वो धीरे 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 कम हो जाता है, क्योंकि फिर एक चले जा रहा है सब छोड़ के। एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट आई थिंक। एंड बिकॉज वंस द यूजी लाइफ चेंज खत्म होती है, उसके बाद everything change, because you arrive in a UG as a boy, as a girl, and by the end of the course you become a man and a lady. Okay, you have become the professional. So that attitude, that treatment, because the patient के साथ interaction है, लोगों के साथ interaction है, हमको पता है कि प्रोफेशनल कोर्स का एप्लीकेशन क्या कर सकना है, ये सारी चीजें होती है। ये हमारे 10th-12th में नहीं होता, वहां पे अलग ही लेवल का इनोसेंस चल रहा है। तो राइट, सो दैट इज द थिंग। और यही एक पैटर्न है। अब मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी, ऐसा कुछ मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं, बट यस आई यूज्ड टू बी डांस
इन यूजी इंटर्नशिप में मेरे यहाँ तक बाल थे, यू नो दैट वाह, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। वो वक्त ही ऐसा था, कोई भी बोलेगा तो कोई पागल बोलेगा, लेकिन चलो वो टाइम रहता है, फिर वो कांड करने में भी अलग ही स्वैग रहता है कि मैंने करके दिखाया। जो किसी ने नहीं किया हमने किया, सो दैट वाज द थिंग, आवर बैच वाज वेरी नाइस एंड आई यू नो हमारे टाइम पे नहीं था, मतलब आई डोंट नो, आई कैंट बिलीव कि मैं ये बोल रहा हूँ हमारे टाइम पे नहीं था, बट या मोबाइल तब हमारे थर्ड ईयर से हमारे बैच में आना शुरू हुए थे, कंप्यूटर लैपटॉप्स वेयर वेरी रेयर, तो कनेक्टिविटी वाज वेरी लेस, यू नो लैंडलाइंस वेयर देयर, सो वो एक पॉइंट था कि किसी को बात करना, ये करना है क्या, ऐसा फोन करके बोलते नहीं थे, और एक टेरर था, टीचर्स के बारे में एक रिस्पेक्ट थी, मतलब अगर किसी को काम मार्क कम पड़ गए या किसी को ये हो गया और उसके घर पे पता चलता है, तो उसके पापा बच्चे को ज्यादा डांटेंगे rather than putting the pressure on the management कि मेरे बेटे को पास करो. This was a part right now. That is not the thing. That not make you what you are supposed to be. So that is the thing. बस ऐसा overall मेरा UG लाइफ था. बहुत awesome था यार, हमारा भी ऐसा ही UG लाइफ था. हर किसी का यही स्टोरी था, पूरा सेम होता है. Okay. So, how did you select a specific stream to go into PG? Like, सबको एक confusion रहता है यार, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन सा stream choose करूँ, किसमें मैं ज्यादा better हूँ. तो एक phase रहता है जिसमें हम लोग ना काफी सोचते हैं कि यार कैसे stream choose करना चाहिए. तो आपके लाइफ में ऐसा मूवमेंट क्या आया कि आपने सोच लिया कि ओके मुझे यही करना है? Yes. What happened? It is again. मैं ऐसे डायरेक्ट यूजी के बाद पीजी में नहीं गया हूँ. It has take almost 5 years or 6 years gap between my UG and PG. मैं पीजी में 2013 बैच में एंटर किया. So in that between time after the college, after UG, I went for the clinical research under Khan Institute UK to the Mumbai. You know, for pursuing. Then I work for some 2-3 pharma companies. I also worked at the Nagpur at the Cancer Research Institute. Under Ajay Mehta Hospital, so I was, you know, try to assist him in his CA operation. I used to operate on all the CAs. Whatever sir was doing, I was operating. Eventually I landed up into the Pune after the Mumbai, and then after that, something I had to, you know, leave all those things, and I landed up into the Parbhani Dental College. Mein I was for almost 8 to 9 months. And it was a very different experience, you know, that when I was there, I don't know my students are here or not, but I think कुछ students आए भी होंगे. See, वहाँ पे जब मैं गया तो the foundation batch was in third year, so there were only 3 batches, first year, second year, third year, that's it. अब मैं जिस कॉलेज से आया हूँ, okay, जो हमारा कॉलेज है सावंगी हम जिसको बोलते हैं, we actually studied in a palace. It is a palace. Yeah. It's a A grade college, top notch, सब कुछ हमारे यहाँ पे, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, अलग ही लेवल का इनका स्ट्रगल चल रहा है, because they were, you know, the startup of college and all those things. When I enter that with my Parbhani college, what I see the difference, the first thing that hit me the difference, and I think of myself कि these people are here for becoming a doctor, right? So when they become a graduate, they will be ended up in doing the patients. If they haven't given a particular proper type of knowledge and the application and all those things, और या फिर उनकी वो कॉलेज लाइफ उस टाइप में बनी ही नहीं, तो फिर क्या मतलब लाइफ में, राइट? सो जितना टाइम मैं था, आई ट्राइड टू मेक अ डिफरेंस. आई ऑर्गेनाइज द गैदरिंग, आई वाज हेल्पिंग देम इन एग्जाम एंड स्टडी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, द स्पोर्ट्स, and I told, and one thing I learned from Parbhani, all the students, all the 300 of them, they were very innocent and very down to earth. Nobody has any, you know, किसी का ऐसा गुरूर नहीं था कि मेरे पापा ये है तो मैं ये कर लूंगा, because everybody is suffering the same thing. I'm not saying they're suffering क्योंकि बहुत ऐसा हाल ऐसा नहीं है, but ये लगता है कि मैंने ये चीज देखी है कि ये इतनी बेस्ट हुआ करती है, एक ग्रेजुएशन ऐसा हो सकता है, एक बीडीएस ग्रेजुएशन हो सकता है, और मैं जो देखा उस टाइम पे वो ऐसा था, तो वो एक डिफरेंस मुझे पता चल रहा था, तो मुझे से दया भी नहीं आ रही थी, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि नो, समथिंग हैज टू बी डन इफ आई कैन डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट. और आई मस्ट से जो भी मेरा 300 लड़कों के साथ जो भी बॉन्ड बना, दैट वाज अनब्रेकेबल, दैट वाज लाइक नॉट कंपेयर टू एनी ऑफ अदर माय फ्रेंड्स.
they were most of them are still with contact with me. Sometimes they Yeah. message me. बहुत सारे लोगों ने पीजी भी वगैरह लिया, यहाँ से वहाँ मूव है, वहाँ से यहाँ मूव है, फिर उनके फोन कॉल चलते रहते कि सर ऐसा है, ये टेंशन है, हर किसी का है, कोई क्लिनिक डाल रहा है तो उनका अलग टेंशन चलता है. तो see, I want those people to be happy, and now they are all doing good. Now the permanent college is quite good, I must say. It's Wow. right now it's very good infrastructure and all those things. I don't know about the management, but fine, it's fine. It's nice college right now. So So that the was the college thing people that happened have, with Perpanium. yeah, so college people ने आपको काफी ज्यादा ये प्यार दिया होगा ना, because you like you made a change over there. The things, the experiences that they were not able to get it from many years जब से college शुरू हुआ था तब से. But you, when Yeah. you went over there, you made a change. That is really a great thing, sir. स्टूडेंट्स वर वेरी वेरी नाइस एंड मुझे अभी भी उन लोगों पे गर्व होता है. मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे कि जो जिन लोगों ने बहुत एक्सीलेंस किया है, मतलब चाहे आप उनका केसेस प्रेजेंटेशन या आपका किसी से जो भी था, उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद है. तो दैट वाज द पार्ट ऑफ द व्हाट हैपेंड इन द परमनी. आफ्टर द परमनी Yeah. आई हैड टू कम बैक टू Bardhaji, okay, because some Okay. problem at my home and I had to come back. So I come back and then I started thinking of starting my own clinic. So by the time I joined this local at the Dr. Karmande hospital, and he suggested me to you must go for the PG. And eventually, Yeah. what happened in 2013, I opened my clinic. Okay, and after the 6 months, I got admission into the MDs. What? क्लिनिक भी और एडमिशन भी ले लिया सर. Yes, yes, yes. That was the thing which happened. ठीक है, तो ये हो गया. Yeah. अब हुआ ऐसा कि am I audible? Yes, sir, you are. Perfect. मेरा थोड़ा कनेक्शन चला गया था. ओके, ठीक है. तो आई वाज Okay. entered to the PG. Now when I entered to the PG, I had choices of this branch or that branch because whatever the deals we having. But I must say what I love is blood. मुझे खून बहुत पसंद है. Ah, I don't like salad. I don't like salad. मुझे खून You बहुत love पसंद है. blood? जहाँ हाँ या जहाँ पे सर्जरी हो, चीरफाड़ हो, ये करना हो, वो एक अलग ही थ्रिल है. इस वेरी डिफरेंट थिंग देन वॉट एवर हैपन. नाउ द डेंटिस्ट हैज ऑलमोस्ट 10 ब्रांचेस. लाइक अब अगर एक थोड़ा सा एक ग्रॉस भी पकड़े तो देयर आर ओनली 2 ब्रांचेस in the dentistry. First is oral surgery. We deal with the cancer Yes. and the fracture and the disimpaction, all those things. And second branch is the perio branch. We are actually the gum surgeon, right? And the implantologist. So we also deal with the blood and the tissue, not that much extent like oral surgeon, but we are dealing with that. Yeah. But our surgeries are very it's very sober and quite aesthetic point of view. So that amazed me too much, and then I land up with the perio. Wow. So it was like a journey to go towards perio, and you fell in love with the stream, and so you thought, okay, I want to go in there, so you just went for it. Wow. काफी लोगों की ऐसी स्टोरी नहीं होती है. They just think like, अरे यार ठीक है ना, यहाँ मिल रहा है और अच्छा लग रहा है तो यहाँ कर लेते हैं. ऐसे काफी सारे फ्रेंड्स थे मेरे. Yeah. Okay, so sir, basically आपका PG life भी काफी obstacles और hurdles वाला रहा होगा. So can you just tell me what difficulties you faced during that period? PG life was quite different for me, because when I entered into the PG life, I was back in the same college after 5 to 6 years. Okay. Yeah. And what I used to see my college in my UG time, after the 5 years entirely changed. Everything has changed. The look is changed, the aesthetic changed, the crowd has been changed, it has become more richer, more wealthier and all those things. So that was a very different thing. It is the old college, but the updated patch. Yeah. तो मतलब मैं पीजी में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये क्या आ गया मैं. Fine. But again, the PG life is, is quite different from the UG life. क्योंकि उसमें फेस टू फेस ज्यादा होता है. यहाँ पे 100 बच्चे, यहाँ पे तुम्हारे बैच में सिर्फ 3 लोग हैं.
और तीनों लोग एक ही लेवल पे एक ही टाइप का स्ट्रगल करना है, हर चीज को वही फेस करना है, तो जो उनका पैटर्न करिकुलम हमारा जो होता है, so that was a similar thing, that was very exciting, yeah, it is frustrating, that was hectic, वो टेंशन भी देता था, yes, but that was adventurous, I must say. So what happened with me, as I told you, my clinic has opened in 2013, and after 6 months I was went to the PG. Now I have the clinic to run and I have PG to continue. Now my boss was in the mindset कि my PG students are not supposed to have the clinic, because if they are enter into the PG, yeah, that thing, कुछ बहुत सारे लोग अलाउ भी करते हैं कि उन लोग मतलब जहाँ पे मुंबई पुणे में होता है, मेट्रो सिटीज में वगैरह, तो वो होता है, लेकिन हमारे टाइप पे ऐसा नहीं था. तो what happened, no, I have to balance between my secret clinic and the PG life. बहुत लोगों को पता ही नहीं था, मेरे बॉस को पता चला when I was a third year first in starting. 2 साल उनको पता ही नहीं, 2 साल उनने मेरे को चिल्लाया, हाँ अब कॉलेज के बाद तो तुम घूमेंगे, टपरी पे बैठेंगे, बच्चों में बैठेंगे. क्या बोल रहे हो, कहाँ चल, कुछ नहीं पता आपको सर. उनको कुछ नहीं पता, ठीक है, बट ठीक है, मतलब पार्टी तो करेंगे, लेकिन वो भी करना है सर, अब क्या बताएं आपको, ठीक है. सो दैट इज हैपन. हाँ, मुझे उस टाइम पे भी बहुत मजा आया. इवन माय स्टडी प्लेस वाज माय क्लिनिक, बिकॉज यहीं पे प्रिंटर भी था, माय वाईफाई कनेक्शन वाज देयर, माय लैपटॉप वाज देयर, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड वो हमारा वो पीजी में वो सब रहता ही है ना, कि हम लोग बहुत सारे प्रिंट आउट्स, जेरोक्स एंड वो अंडरलाइनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें रहती है, आर्टिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. So clinic has become my place. I used to stay in the clinic in the late night. I must say, even during that time, I have treated many patient. रात को 1-2 बजे भी मैंने पेशेंट किया हुआ, because क्योंकि होता क्या था कि मैं रात को पढ़ता था क्लिनिक पे ही, तो अब सब बंद है और सिर्फ एक लाइट चालू है मेरे क्लिनिक का. तो जो कमांडोज या वो जो घूमते हैं, तो वो कभी कभार आ जाते थे कि लाइट क्यों चालू है. Eventually they understood कि no, he's a guy, he's been doing his post graduation, he sits here and study. So वो कभी कभार आते थे, पानी पिएंगे, बात करेंगे, सब ओके, ऐसा पूछताछ के जाएंगे and all those things. So many times it happens, some cop asked me, can I get a scaling if I come at the night? बोला आप पे करेंगे तो मैं रात को क्या, मैं सुबह 4 बजे भी कर दूंगा सर. अच्छा, आपका तो फिर 24 घंटा सर्विस चालू होगा ना वहाँ पे, जब कभी आप बाहर हो. एग्जैक्टली. तो अगर होता है तो इवन दैट टाइम भी पेशेंट होते थे, तो दैट वाज अनदर थिंग. बट यस, आई अंडरस्टूड मेनी थिंग्स माय पीजी लाइफ. My batchmates were very cool, both of girls, Jayashree and Bushra, they were very awesome. And even the Vikas was one of the batchmate. He was very good too. So हमारा ओवरऑल जो डेकोरम था पीजी का, अंडर द बॉस का टेरर बोल दो या गाइडेंस बोल दो या डेकोरम बोल दो, वॉट एवर इट इज, जो भी था वो इतना कॉन्शियस एंड स्पेसिफिक था कि हर बैच वही एक्सपीरियंस करते जाते थे. सो एवरीबॉडी इज इनटू द सेम, यू नो, वी वर ऑल सेलिंग द सेम बोट एंड आवर बोट वाज टाइटैनिक. डूबती है एक टाइम पे. एग्जैक्टली. तो ये बात तो थी. लेकिन हाँ, बहुत मजा आया. हाँ, जनरेशन गैप मुझे फील हुआ उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज फ्रॉम 2001 बैच, ऑल द पीजीज, इवन माय सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर और सुपर सीनियर, इवन दे वाज माय जूनियर आल्सो, बैच वाइज अगर पूछा था तो. बट आई डिड नेवर ट्राई टू फोर्सफुली शो देम दैट आई एम दैट, मैं ये बैच से बिलोंग करता हूँ, बिकॉज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम ड्यूरिंग माय पीजी टाइम, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन, you have to be submissive. If you are submissive, you maintain that decorum and the protocol, you will be very happy and pleased and everybody will help. ठीक है. हर किसी को जानने की जरूरत नहीं है कि मैं रात में शाम में मेरे को क्लिनिक भी चलाना होता है या फिर मैं वहां से भी मेरा खर्चा चलाता हूँ and all those things. बट वो मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर पे नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, वो चीजें धीरे धीरे रिवील होगी. मैं सेकंड ईयर में मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन किया था, सेकंड ईयर में मैंने फर्स्ट इम्प्लांट डाला था. I've been going to the consultation but over the period of time, it was entire thing helped me out in my PG also, and right now whatever I am, with good thing or bad thing, that helped me at those things. I must say that was the best part of the PG, I must say. I would love to say a memory that we had, जब मैं कभी पेरियो डिपार्टमेंट में जाती थी, तो मैं ऐसा करके जाती थी.
और तब आप रहते थे वहां पर, आपका भाग दौड़ शुरू रहता था लास्ट एंड से लेके तो दरवाजे तक, अंदर जाना बाहर आना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। और मैं इतनी हेल्पलेस बैठती थी क्योंकि नोट्स के इश्यूज रहते थे, और हम लोग ऐसे, सर ने कभी हमको एक साथ बैठने नहीं दिया। ही यूज्ड टू से हाँ कि एक स्पेसिफिक डेंटल चेयर के आसपास तुम या 2 या 3 लोग ही बैठ सकते हो, ऐसे तुम लोग डिवाइड कर लो खुद को, पढ़ो, और 5 से 10 मिनट में तुम्हारा वाइवा होगा। और हम लोग ऐसे भगवान क्या होगा ये सोच सोच के। और जब कभी आप मेरे को दिखते थे मैं आपके पास आती थी, सर प्लीज मेरे को यस थोड़ा सा बता दो, मेरे को नोट दे दो, मेरे को कैसे भी करके आप सिंपलर वे में समझाने वाले समझने वाले नोट्स दे दो, मतलब मेरी तो लाइफ बन जाएगी। उस टाइम पर काफी अलग ही माहौल रहता था। और जब हम लोग यस आपको यस देखते थे सारे पीजीज को, हम सोचते थे, हमको सेल्फ डाउट होता था, यार हम कर पाएंगे क्या, ये कितना भाग रहे हैं, कितनी सारी चीजें एक साथ हैंडल कर रहे हैं। यस और यस आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन को जाके चीजें बतानी पड़ती है, आपको हर एक के साथ, ईच एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन द हम्म डिपार्टमेंट, पेशेंट्स, सारे टीचर स्टाफ, सबसे आपको बात करना रहता है और सबसे आपको एक कंसर्न लेना पड़ता हाँ है। और वो सारी चीजें करना, मतलब आई नेवर सॉ यू लाइक सिटिंग एट वन प्लेस, कभी उस जगह पे, कभी इस जगह पे, कभी उधर। सो आई रियली लाइक टू थैंक यू सो मच सर। आपके नोट्स अभी भी मेरे पास है। आपने जो एडिशनल नोट्स अलग से बनाए थे खुद के स्टडीज के लिए, वो भी आपने मुझे दिए, तो अभी भी मेरे पास है। और वो नोट्स मेरे को पूरे फाइनल ईयर में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। सो थैंक यू सो मच सर। आप अरे द इट्स ओके बेस्ट सीनियर हो, लिटरली बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच Okay, so can you tell me a specific best part that you have experienced in PG life? एक एकदम बेस्ट वाला, सबसे बेस्ट मेमोरी, मतलब आप भूल ही नहीं सकते हो कभी। that best part come into the last. What happened was we have thesis, right? We have thesis and LD, library dissertation, right? Yeah. So what happened was my thesis and LD has been completed around the final years and stuff. And Yeah. somewhere down the line, I don't know where it come from, but somewhere down the line, I understood that my library dissertation can be converted into the book form if I can write it in a specific way, right? Okay. So I did that. I find out on the international sites and I visited very much sites and all those things. And what Yeah. happened was my book was accepted the day before the university practical exam was there. Okay, Wow. एक दिन पहले मुझे मेल आया कि आपकी बुक हम छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. And that publication was a German publication. So it Yeah. has been selling into the entire globe, the Google Books and the Amazon Books and all those things. So that was huge things. और कल मेरी एग्जाम है, मुझे आज मेल आता है शाम में या ऐसा उस टाइम पे. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि कल प्रैक्टिकल एग्जाम है, कल मुझे जाके वो परफॉर्म करना है. Yeah. सुबह 8:30 बजे हम पहुंच रहे, हम कॉलेज में जाते हैं. मैं बोला कि मैं किसे बताऊं, तो मैंने डायरेक्ट मेरे गाइड को बताया कि सर ऐसा ऐसा मेल आया है. सो माय गाइड वाज डिफरेंट एंड माय बॉस वाज डिफरेंट. ओके, माय गाइड वाज डॉक्टर दाड़से सर, एंड ही वाज वेरी जेम ऑफ अ गाय. एंड माय बॉस वाज ही इज अ प्योर टीचर. My boss was Dr. Bongare sir was a pure teacher, उनको पता है कि किस इंसान को कैसे पढ़ाना है और वो पढ़ा के छोड़ेगा. उनको वही आता है. He was the best teacher. And my guide was Dr. Dace sir was very cool guy. Everything is managed by the boss also. Boss only, तो वो उनका टेंशन है, वो he was very chill eyed person. जैसे उनको पता चला कि मेरी बुक एक्सेप्ट हो गई है, उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ इन सावंगी. और इतने ज्यादा खुश, हर जगह, मतलब वो एक्सटर्नल को बता रहे, वो इसको बता रहे, उसको बता रहे, इसको बता रहे. वो उनका अलग ही गुरूर कि ये मेरे बेटे ने करके दिखाया, मेरे लड़के ने करके उनके लिए भी विक्ट्री का काम हो गया ना. but I was in the exam phase though. Even मैं नहीं सोचा मुझे क्या फील करना चाहिए.
और सही है। और सर वाज टू मच एक्साइटेड, इवन द एक्सटर्नल आस्क्ड मी कि तुमने क्या किया, कैसे किया, हाउ इट हैपेंड एंड ऑल दोस थिंग्स. Yeah. For that day, exam was good. Exam was good. I performed well, and whatever anything, everything was fall into good. But that moment is still in my brain. That was the best part of my PG life. Even my batchmates also Wow. very much excited कि आशीष कैसे किया तूने? उनका पैटर्न था, but it was very nice thing. Yeah. वाह यार सर, आपका यूजी लाइफ भी एकदम खतरनाक, पीजी लाइफ भी एकदम खतरनाक, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके बैठे हो यार आप सर। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो सर बेसिकली कुछ चीजें भी मेरे को पता चली है जब मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जैसे बनाए हैं, तो आप कैन यू जस्ट सपोर्ट मी ऑन दैट. आई विल आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन. Can you tell us the story of getting a national award for best dental author by the hands of Milkha Singh? अरे. Please. Yeah, that was a thing. Wow. So it's the same man. book. Okay, that book Okay. that published after my post graduation, that was accepted. Eventually my exam was done, and then my PG was done, and then हम वो अपने इसमें चले गए. In the parallel way that book was been published, and फिर वो book print out कर होके आई, फिर मैंने अपने गाइड को गिफ्ट दी, डिपार्टमेंट को गिफ्ट दी, बॉस को गिफ्ट दी, एंड उसके फोटोग्राफ्स हमने लिए एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड व्हेन यू डू दैट थिंग, यू पोस्ट ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? Yeah. सो आई डिड द सेम थिंग. अब मुझे पता नहीं कहीं से तो भी मुझे मेरे एक सर का कॉल आया. द सर ही इज फ्रॉम फर्स्ट बैच ऑफ ओरल सर्जरी. जैसे डॉक्टर भोला सर है, उनके बैचमेट, भोला सर के बेस्ट फ्रेंड, ऐसा समझ लो. डॉक्टर सचिन सचदेवा सर, ही इज इन दिल्ली. मुझे पता नहीं कि उन्होंने कहाँ से उन्हें देख लिया या उनको कैसे याद हुआ या क्या, मुझे उनका मैसेंजर पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप एफबी मैसेंजर पे कि अरे तूने ऐसा ऐसा किया है, तो डू यू हैव अ सॉफ्ट कॉपी एंड ऑल दोस थिंग्स. मैं बोला हाँ सर, आई कैन सेंड यू. तो बोले मुझे सेंड मत कर, एक अवार्ड सेरेमनी है, उसमें तुझे सेंड करना है. अब अवार्ड सेरेमनी के बारे में फ्रेश पास आउट ग्रेजुएट और फ्रेश पास आउट पोस्ट ग्रेजुएट हमारा इतना कंसर्न नहीं होता है, ठीक है. अभी तो निकले हैं भाई इतने टॉर्चर से, अभी कहाँ पता जाएंगे. So it was like that over there, okay. And again I have the clinic to run. So that what happened was कि सर ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है. That award was the Indian Healthcare Professional Award, IHP award they called it, and it is supposed to be India का healthcare Oscar they were called. Yes, because yes. you know it was very grand and all those things. तो उसमें था कि मिल्खा सिंह के हाथों से अवार्ड मिलेगा and all those things. तो मैं बोला ठीक है, क्या है, कर देते हैं सबमिट, सर ने बोला है तो मैंने ऐसे ही कर दिया. What happened was I got that award. I got the letter that you have won the award. Yes. In the 2017 December, I guess. मैं वहां नहीं थी सर, वहां पर मेरे को अभी ताली बजा लेने दो. So वहां पे हुआ ये कि वो अब हो गया, तो फिर डिसाइड हो गया कि चलो दिल्ली. अब इट हैपेंस टू बी कि एट द सेम टाइम पीरियड, मतलब जिस दिन अवार्ड था उसी के आजू बाजू, मतलब उसी टाइम पे हमारा एक एक्सपोडेंट होता है प्रगति मैदान दिल्ली में. यहाँ पे सारे मटेरियल्स हम लोग लेने जाते हैं, बल्क परचेसिंग जिसको बोलते हैं, हम सब लेके आते हैं. यार दैट हैपेंस, वो उसी टाइम पे था. तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग दिल्ली जा रहे थे कि हम लोग चलो भाई चलो जल्दी. मैंने उसको बताया भी कि ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है चलो बढ़िया चलते, मिल्खा सिंह से मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. now the excitement has begun. Okay, now I personally I admit it, मुझे मिल्खा सिंह के बारे में कुछ नहीं पता था. Before the movie came, nothing. मुझे नहीं पता कि वो इंडिया में कितने लोगों को पता था, या हम लोग में से कितने लोगों को पता था, लेकिन बहुत कम नंबर है कि इन लोग को पता था कि मिल्खा सिंह नाम का एक इंसान था जिसने, जो कि इंडियन है और जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था. He has the world record of his own. अब वो मूवी आई, दैट एक्साइटमेंट बिगिंस, और फिर वो मूवी वगैरह देखने का, उसके बाद तो मैंने कितने बार मूवी देख डाली, और हर बार फिर वो मूवी देखता था तो मेरे दिमाग में वो बहुत चलता रहता था कि ओ माय गॉड, वो पाकिस्तान से आता है, मॉम डैड नहीं है, भाई वगैरह कोई नहीं, सिर्फ एक बहन, वो भी कैसे तो भी मिलती है. वहां से वो भाग रहा है, तो ऐसे भाग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, यू नो दैट पैशन. फिर उसके फेलियर्स भी है कि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता है ऑस्ट्रेलिया जब जाता है, एंड देन ही यू नो टेक द ओथ कि नहीं मुझे करना ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके रहूंगा. फिर उसका वो स्ट्रगल, जितना भी उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड द वे द डायरेक्टर हैव
proposed it or posed it, it was phenomenal. और Yeah. बहुत ही ज्यादा वो मतलब वो देख के बहुत जोश आता है, you know, there are very few movies you feel it कि अरे हाँ यार, Yes. yes, and his struggle with the Pakistan crowd and Pakistan soil and all those things, and बाद में आखिरी में जो फिर वो भागता है तो फिर वो really it was a भाग मिल्खा भाग thing. Yes, yes, yes. So now I was in the thing कि मिल्खा सिंह के हाथ से अवार्ड मिलने वाला है, और my thought process was like that, I am going to the stage, मिल्खा सिंह Yes. will came, मैं उनसे अवार्ड लूंगा, फिर मैं पैरी पोना करूंगा, फिर लूंगा थैंक यू, फिर फोटो खींचूंगा, फिर ये हाँ. that is supposed to be happen, right? Yes. यही हुआ होगा ना सर? But no, that is the dream. That the reality is quite different. What happened was we completed our. That's very interesting story. Okay, I'm telling Yeah. you. And that this story I'm giving a specific name. The name is That One Drink. Oh. Okay. तो सुनो, तो हुआ ये कि हम लोग वैसे 1.5 घंटा लेट पहुंचे, कि अब पहुंचने के बाद लेट हो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि, लेकिन जनरली अवार्ड फंक्शन आराम से शुरू होते। मिल्खा सिंह जी थे, फिर उसके साथ एक सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर भी थे, और एक दो कुछ कुछ बड़े बड़े लोग थे। दैट शो वाज ग्रैंड, दैट होटल वेटिकन वाज देयर, बेहतरीन ग्रैंड शो, राइट। एंड जैसे मैं पहुंचा, आई वाज सुपर एक्साइटेड, मुझे से समझ नहीं रहा मैं क्या करूं, मतलब मैं इंसान को देख के, फिर उनका स्पीच हुआ, इट वाज सो फेनोमेनल, एंड यू नो एंटायर टाइम दैट मूवी वाज रनिंग इनसाइड माय ब्रेन। ओके, तो वो अब वो हो रहा है कि यार ये इंसान एग्जिस्ट करता था, मुझे पता ही नहीं था, ही ओ माय गॉड, आई एम सीइंग हिम एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट थिंग। बट हैपन वाज आई वाज गेटिंग टू मच नर्वस, अब मुझे पता नहीं था क्या। एंड उस दिन उनने ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 180 अवार्ड्स बांटे, क्योंकि इट वाज हेल्थ केयर अवार्ड, सो दे वर इंक्लूडेड द मेडिकल प्रैक्टिशनर, डेंटल प्रैक्टिशनर एंड अदर मेडिकल फैटर्निटी एंड एवरीबडी, उसके बहुत सारे कैटेगरीज उन्होंने बताए थे। बिग 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 ग्रैंड अवार्ड, राइट। सो उसमें मेरा था कि बेस्ट डेंटल ऑथर ऑफ द ईयर 2017। सो अब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा था कि यार ये तो मेरा नंबर शायद बहुत लेट आएगा, तो मैं क्या करूं, अब मैं और नर्वस हो रहा हूं। फिर हम यहाँ घूम रहे, वहां घूम रहे, फिर और मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था, वो अलग ही स्वैग चल रहा है, वो एकदम कॉन्फिडेंटली घूम रहा है, यार क्यों भाग रहा है, क्यों थक रहा है, क्यों इधर भाग रहा है। ठीक है। सो हुआ ये सा कि आई वॉज गेटिंग टू मच नर्वस, कि मुझे समझ ही नहीं रहा था मैं क्या करूं, कि मैं जाके पूछूं क्या कि कितना टाइम लगेगा, मैं खाना खाने जाऊंगा या फिर कुछ स्टार्टर लेने ये करने जाऊंगा तो ये चला तो नहीं जाएगा, ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा। दैट वाज द थिंग। इवेंचुअली व्हाट हैपन वाज, मैं थोड़ा पीछे साइड में गया, जहां पे वो जिनके पास वो जो नाम रहते, मैंने उनके पूछा कि ये मेरा नंबर कब है, तो मुझे समझ में आया कि बहुत पीछे, बिकॉज डेंटल ऑथर इज वेरी डिफरेंट एंटाइटी, यू नो। पहले वो फैकल्टी ये करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कन्वर्ट करेंगे, फिर और कोई अचीवमेंट रहेंगे। डेंटल ऑथर इज वेरी डिफरेंट एंटाइटी, तो वो बहुत पीछे था। तो मुझे समझ गया कि भैया तब लेट तो बहुत टाइम लगेगा। फिर अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई, लोगों को मिलना चालू हुआ, आई बिकम अगेन टू मच नर्वस। और इन द मीन टाइम मेरा दोस्त आके उधर बैठ गया काउंटर पे, उनके पास टोकन थे, वो बोल रहा है कि तू इतना नर्वस क्यों हो रहा है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ये है वैसा है ऑल दो। तो वो मुझे हाँ अभी आ रहा है, या तो माय फ्रेंड सेज कि अरे तू इतना टेंशन मत ले, ये एक मार। तो मैं बोला कि यार क्या बकवास कर रहा है भाई। तो ही वाज लाइक, अबे तू बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहा है, ऐसा क्यों, इतना पसीना आ रहा है, एंड ही वाज एक्साइटेड एंड आई कैन फीलिंग इट, धक 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 देन। तो वो बोलता कि नहीं तो फिर उसने तो जबरदस्ती किया एंड आई टुक दैट ड्रिंक। जैसे ही दैट ड्रिंक गेट इनसाइड मी, फिर थोड़ी देर में फिर उसने जो भी असर दिखाना था नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, बट एवरीथिंग वाज सेटल। नाउ आई हैव थॉट कि देखो कुछ भी हो जाए, तुमको मिल्खा सिंह जी के हाथ से अवार्ड तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत है लाइन में और तुम हो बहुत पीछे।
तो हाँ भाई ये जो तुम करने आए थे फिर उसका क्या? आई वॉज थिंकिंग नाउ माई ब्रेन स्टार्टेड थिंकिंग ऑल दोस थिंग कि क्या करे। फिर मैं गया पूछा कि कैसा है इनका सिस्टम ओवरऑल। तो नाउ आई अंडरस्टूड कि हुआ ये था कि नाउ द जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर थे वो निकल रहे थे, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना, अभी वो थोड़े 200 अवार्ड लेते बैठे का, ही इज वेरी बिजी गाय। सो अब Yes, एक yes. निकला है तो दूसरा भी निकलेगा, दूसरा है तो तीसरा भी निकलेगा, ऐसे करते करते उनने सबने निकलना है। तो ये डिसाइड हो गया कि अभी 15 मिनट में मिल्खा सिंह जी निकलने वाले हैं। और जैसे ही ऐसा डिक्लेयर हुआ, ओ माय गॉड, कम से कम 50-60 लोग, अलग अलग, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ ये थे वो थे, पेरेंट्स थे, स्टूडेंट थे, बच्चे थे, जो भी थे, फटाफट स्टेज पे डायस पे दौड़ के सेल्फी के लिए उनका चल रहा है। हाँ तो मैं, ऑब्वियस है ना, मिल्खा सिंह जी से रोज रोज थोड़ी मिलना होता है, इट्स बड़ा ऑब्वियस। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैं बोला यार ये इतना बड़ा राउंड बना है, मैं कहाँ घुसूं फोटो निकालने के लिए? तो मैं बोला कि यार तो रेडी चल रहा है, क्या करे क्या नहीं। तो ये अब समझ के चलो कि वहां से वो जो क्राउड था, मतलब मिल्खा सिंह जी सेंटर में खड़े हैं, उनके आजू बाजू ऑलमोस्ट 50-60 लोग खड़े, कोई फोटो खींच रहा है, कोई ये कर रहा है। एंड मिल्खा सिंह जी वॉज वेरी कूल, राइट? ही इज नॉट, वो ऐसा एक्टर नहीं है कि सेल्फी के लिए पोज देंगे, ना 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 ना। ही इज अ स्पोर्ट्समैन एंड इट शोज ही इज ट्रू जेंटलमैन। सो मतलब इतना सही प्रोपोर्शनल इंसान है, टू द पॉइंट बात करता है, एकदम वेरी नाइस, वेरी टू द टॉप नॉट पर्सनैलिटी। तो दैट हैपन। अब वो 50-60 का जो लोगों का जत्था वो धीरे धीरे आगे जा रहा है, मतलब मिल्खा सिंह जी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं बाहर। अब बीच में फिर वो कुछ बॉडीगार्ड आए, तो 60 लोग के 10 कम हो गए, फिर और 5 कम हो गए, फिर 10 कम हो गए, 3 कम हो गए, 2 कम हो गए। और मैं एक भी बार वो जत्थे में गया नहीं, मैं 10 फुट दूर, ठीक है, मैं गया पीछे। हाँ, मैं दूर से देख रहा हूँ, बोला चलो चलो देखो, क्योंकि आई हैड सम डिफरेंट प्लान। ओके, तो अब हुआ ये था कि अब ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि उनके 4-5 बॉडीगार्ड आ गए और उन्होंने बोला कि हो गया अभी, चलो जाओ, सब लोग चले गए। और मिल्खा सिंह जी और जो ऑर्गेनाइजर थे वो उनके साथ जा रहे थे, और उनके 2 बॉडीगार्ड, ठीक है। अब मैं अकेला था, ठीक है, सोलो पर्सन, तो मैं एकदम धीरे धीरे बेबी स्टेप में जा रहा हूँ उनके पीछे। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उनने मेरे तरफ देखा है लाइक दैट, तो मैंने कहा कि तो उनको वो समझ गया कि अच्छा इनको ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैं बोला हाँ, तो उनको समझ गया कि ठीक है। अब वो शायद मुझे पहचानती भी थी, क्योंकि मैंने उनको फोन करके बहुत परेशान किया था अवार्ड से पहले, तो ही नो कि हाँ ये इसको अवार्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। पहुंचे और नाउ द पोजीशन वाज कि वो सर ने मिल्खा सिंह जी को रिक्वेस्ट किया कि सर ये हमारे डॉक्टर सर है और इनको अवार्ड मिला है, आप एक उनको ऑटोग्राफ दे देंगे। और मिल्खा सिंह जी वो सिटिंग इन हिज कार, इन हिज मर्स, राइट। अब वो बैठे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। बस वो एक मोमेंट था, मुझे नहीं पता मुझ में कहां से क्या एनर्जी आई, मेरा क्या दिमाग चला। मैं फट से अपनी बुक निकाला, दौड़ते दौड़ते गया, फटाक से उनको दिया। और वो होता है ना कि अभी जैसे बॉडीगार्ड सब खड़े हैं, अब वो सिग्नेचर भी दे रहे, तो वो मुझे नहीं पता ना कि क्या है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते घुस गया। नाउ imagine the thing, okay? Now imagine the thing. The car has been there. Sir, Milkha Singh ji was sitting there. He's holding my book, right? He's holding my book, and he was looking at the title, implant supported overdenture. उनको कुछ नहीं समझना उनसे, बोले क्या है ये। ठीक है भाई, बुक लिखिए, इट्स ओके। बट ही वाज लाइक ओके, ऐसा ऐसा उनने किया। और ये सब मुझे सब गाड़ी से दिख रहा है, और गाड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला है, तो वो जो मिडल बीम होता है और गाड़ी का जो पोर्शन होता है उसमें से स्पेस है, तो उनने ओपन किया, उसके ऊपर साइन किया। उतने देर में मैंने फोटो ले ली सर के साथ, जैसी भी आदि है, और या ही साइनिंग माय थिंग। एंड फिर उसके बाद उनको पता नहीं क्या लगा, लेकिन उनने ऊपर देखा और ही सेड बहुत अच्छे कर रहे हो और जोर लगाओ। और मेरे मुंह से क्या निकला होगा, आओ आओ जी। बिकॉज I was into that movie so much that I was thinking that I am Farhan Akhtar. Aho. Now I know I know it. अरे कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। See, I don't know how much dramatic it may sound,
बट एक पोजीशन याद रखो कि मैं ऐसे झुक के खड़ा हूं गाड़ी के सामने, ऐसा मोबाइल पकड़ के, ठीक है, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ आहो, तो उसमें थोड़ा वो फेज आएगा, वो तो मूवी में अच्छा दिखाते। सो दैट वाज द थिंग, सी दैट इज माय बुक, राइट, आई ब्रिंग इट फॉर Wow. या, Wow. एंड दिस इज द थिंग। Wow, अब यहाँ पे sir. थोड़ा Oh उल्टा my दिख रहा, God. हाँ, उल्टा दिख रहा यहाँ है, पे शायद उल्टा but यार उल्टा दिख रहा है। हाँ, सो but अब it's वो चीज होने visible के कि बाद हम उन्होंने signature दिया है। यस 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 यस, अब मुझे पता है कि उनको तो वो चीज याद भी नहीं रहेगी, लेकिन मेरे लाइफ में वो होके गई, दैट वाज द थिंग। सो यस, वो ट्रॉफी है मेरे पास, वो सर्टिफिकेट है, लेकिन शायद उसका उतनी कीमत नहीं है, वो फेड आउट हो जाएगी, लेकिन दिस थिंग I don't know whether it will fade Awesome. out or not. It will stay as always. So that is my Yes. national award story. वाह सर, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। काफी ज्यादा एडवेंचरस थी। एक क्वेश्चन में इतना बड़ा एडवेंचर Yeah. देखना मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई है। Yes, yes. Yes. So what makes you like to form an IDA Wardha branch and how is the journey so far? Yeah. Idea Vardha branch, like Indian Dental Association, many people might be knowing it, or the viewers, I must say. Indian Dental Association is similar to Indian Medical Association, right? It's Yeah. deals with the ये ad आती है ना, Idea प्रमाणित toothpaste and all those Yes. things. Idea Vardha branch was not there. So what happened was, when I was in 2014, one WhatsApp group was formed, and वर्धा के सारे प्रैक्टिशनर्स को उसमें ऐड कर दिया था, और फिर हमारे थोड़े बहुत काम चलते थे। उस टाइम पे एक छोटा सा एक अनऑफिशियल ग्रुप था, डेंटल एसोसिएशन ऑफ वर्धा, ऐसा हम लोग उनको बोलते थे, और हम लोग ने उसमें बहुत अच्छा काम भी किया। लोग काम, अब उस टाइम पे तो मैं पीजी कर रहा था, 2014-15 तक तो मैं पीजी कर रहा था, तो मेरा कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था नहीं। बाय द टाइम द पीजी खत्म हुआ, फिर जब हम लोग, मैं वापस आया कि अब प्योर प्रैक्टिस करना है, फिर इंटरेक्शन बढ़ जाता है, तो चालू था कि क्या कर रहे क्या नहीं। फिर कुछ लोगों का बोलना था कि आइडिया बनाना चाहिए, कुछ लोग का बोलना था कि अभी से आइडिया नहीं बनाना चाहिए, हम लोग को, लोगों को साथ में लाओ फिर बनाते हैं। अब इसमें वापस एक डाउट आ रहा है कि ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, वो ऐसा वैसा। इट हैपेंस दैट कि वन ऑफ माय टू सीनियर्स फ्रॉम पीरियो डिपार्टमेंट, और फर्स्ट पीरियो पीजी ऑफ अवर कॉलेज, डॉक्टर गिरीश भुतड़ा सर फ्रॉम नागपुर, एंड डॉक्टर गगन जायसवाल सर फ्रॉम इंदौर, he was Okay. the president of their branches at that time. So I asked them कि सर ऐसा ऐसा है। अब कैसा है कि जब हम लोग अपने सीनियर से बात करते हैं, या हम लोग हमारे इससे बात करते हैं, तो हम लोग मतलब उनके सामने ओपन अप हो सकते हैं कि सर ये सही में होता है क्या, कुछ काम का है क्या, गलत तो नहीं है, होगा कि नहीं, मतलब जो भी है। क्योंकि किसी ऑफिशियल से बात करोगे तो हम थोड़ा डेकोरम मेंटेन करते हैं कि उसने अपने को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, लेकिन पीजीज है, अपने सीनियर से हो रहे, तो वो तो चलता है। So I asked him, तो उनका तो ऐसा, तो they were both were like, ना 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 बेटा आशीष, तू करेगा, तू करना ही है, वो इजी है, आराम से हो जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस थी, तो प्रोसेस वाज लाइक कि जितने हमारे मेंबर्स है उनका सबका साइन कलेक्ट करना रहता एक फॉर्मेट में, और एक सबमिशन करना पड़ता, देन एप्लीकेशन, ऑल दोस थिंग्स। सो व्हाट हैपन वाज कि मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर एसोसिएशन बना रहे हैं, वर्धा में उस टाइम पे ऑलमोस्ट 60 डॉक्टर्स थे, मतलब प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग सब पकड़ती, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी आ गए, सावंगी में जो स्टाफ है वो भी आ गया, जो वर्धा से बिलोंग करता है पर्टिकुलरली, और इवन द सेवाग्राम ऑल्सो। तो अब वर्धा का तो मैंने समझ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि अगर ब्रांच बन रहा है तो बस कुछ 5-6 लोग हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया, ब्रांच बन गई और हमें सिर्फ पैसे देने, ये नहीं होना चाहिए। एंड I mean, particularly when the Varda city is such a small city, ठीक है, it's a city, but it's very small, okay, 10-15 किलोमीटर में वर्धा खत्म है, उससे इसमें सारा है, तो हम ऐसे नहीं स्किप कर सकते कि हमारे से 10 किलोमीटर दूर रहता है उसको स्किप कर दो, या बस उसको टेकन फॉर ग्रांटेड पकड़ के चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये बात लगी, तो एक एक साइन के लिए मैं हर एक के पास गया, मैं पर्सनली गया, मैंने किसी टेक्नीशियन को नहीं भेजा या किसी असिस्टेंट को नहीं भेजा या ये कर दो या भेज दो, ना, मैं पर्सनली खुद गया, उनसे बात की, ये की। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है कि एवरीबॉडी वाज स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, वॉट एवर दीज पीपल आर डूइंग, लाइक आइडिया वर्धा अगर उनको बनाना है, तो दे आर कंसर्न अबाउट एवरी सिंगल पर्सन, बिकॉज अदरवाइज जब तक मैं कंसल्टेशन को बुलाऊंगा नहीं, वो मेरे क्लिनिक पे कोई क्यों आएगा, जस्ट बिकॉज एक साइन जो आराम से हो सकता है। तो बात करेंगे, ये करेंगे, तब जाके थोड़ा
रियलाइज भी होता है. तो दैट वाज द थिंग. सो इवेंचुअली आईडी वर्धा का वो सारा हमने सबमिट किया. एंड हाँ, उसके बारे में मुझे बहुत सारा मीटिंग के लिए जानी पड़ी. जैसे मैं पूना मेरे को जाना पड़ता था, या औरंगाबाद में गया था एक बार, और मेरे ख्याल से कोल्हापुर एक बार गया था. तो सारी जैसे मीटिंग थी वो जाना पड़ता था. तो उस टाइम पे ऐसा था कि अब एसोसिएशन तो उतनी बनी नहीं है, और मीटिंग को जाना है तो जो भी जाना है वो मुझे अपने पैसों से जाना है. ठीक है, कर मैं सबके लिए रहा हूं, लेकिन अगर मुझे करना है तो वैसे करना है. वन इंसिडेंट आई टेल यू व्हाट हैपेंड वाज, आई वेंट टू पुणे फॉर आईडीए मीटिंग. अब कल मीटिंग थी, आज मैं वर्धा से निकला हूं बाय सैनी ट्रेवल्स. ठीक है, आई डोंट नो अबाउट अमरावती अकोला के आसपास एक ढाबे पे रात में बस रुकती है खाना वाना खाने के लिए, राइट. अब हुआ ऐसा कि खाना खाने के लिए रुकी और अच्छा ढाबा था, तो सब लोग उतर गए. जो सोए थे वो भी उठ के उतरे गए. कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, वो उनका अपना चल रहा है. और मैं भी ऑब्वियसली बाहर था. अब हुआ ऐसा, पता नहीं कहां से अचानक से बस में स्पार्क हुआ एसी में. और एंटायर बस स्टार्टेड बर्निंग, एंड इट वाज सच अ फास्ट थिंग. इन हाफ 20 मिनट्स और 30 मिनट किसी को मौका ही नहीं मिला ना आग बुझाने के लिए. बहुत इन्होंने ट्राई किया बट नहीं हुआ. सारी की सारी बस जल गई, सारी बैग जल गए, कपड़े लत्ते जितना था सब सब सब. कुछ लोगों के लैपटॉप जल गए, किसी का कुछ ज्वेलरी थी वो सब, एवरीथिंग. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास मेरा मोबाइल भी था, मेरा वैलेट भी था, पैसे भी थे, कार्ड भी था, और बस इतना सफिशिएंट होता है एक के लिए. बाकी पानी बाकी चीजें तुम खरीद सकते हो. उस टाइम पर रात को 2-3 बजे फिर मैंने फोन किया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है. फिर एंड एवरी माय एसोसिएशन ड्यूरिंग दैट टाइम शो मी सच अ कंसर्न. आई हैव रिसीव सो मच कॉल कि सर आप ठीक है ना, ये था क्या, वो था, सब ओके क्या, कुछ बहुत नुकसान हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, बस वो करने के बाद फिर मैं वहां पे गया पुणे में, फिर वहां पे भी बताया तो इवन दे वर वेरी मच कंसर्न कि ओ माय गॉड यू हैव कम अ लॉन्ग वे. नहीं तो कोई तो शायद वापस चला जाता था ना कि इतना गड़बड़ हो गया, तो वो आप वहां से वापस चले जाओ. दैट वाज द थिंग. सो इन द मीन टाइम दैट फॉर्म और ये सारा चीजों का क्या कहते हैं उसका रिजल्ट इवेंचुअली हुआ ये कि आईडीए वर्धा फाइनली बन. ओके. हमें पता चला कि आईडीए वर्धा एग्जिस्ट करता था एक टाइम. और जब पीरियड में हुआ कैसा कि डिसमेंटल 10-15 साल पहले था. जब वो डिसमेंटल हो रहा था उसको नहीं है कि नहीं हमको आईडीए वर्धा बचाना है, हमको नहीं सुना हो. मतलब कि ऐसे हिस्ट्री के साथ बाकी लोगों का मोटो हो जाता है, लेकिन जैसे न्यू टीम की जुड़ जाती है, जनरेशन ऑफ पीपल सिमिलर मेंटालिटी दैट क्रिएट द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी हैव वन एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से in the first year we have won 2 awards state level and 1 national award for the IDEA branch. Wow. So that was the thing. And why is when I won that award, मुझे सब लोगों ने बोला कि अभी नासिक में अवार्ड फंक्शन है, तुम जाओ. और अब जब मैं जा रहा था तो सब कमेटी मिलकर से डिसीजन लेती कि अब तू पैसे मत खर्च कर, अब जो भी होगा वो एसोसिएशन से जाएगा कि जरा तेरा जो रहना आना जाने का खर्चा है या रहने का खर्चा है. एंड आई एम बीइंग देयर व्हेन द आईडिया वाज सच अ बेबी, राइट. सो मुझे पता है कि वो एक क्या टाइम क्या था जब हमारे पैसे नहीं होते थे. हम लोग मैसेज करते थे कि हर किसी ने 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करना है, और एक मैसेज पे सारे लोग 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हर कोई अपना इनपुट दे रहा है, ऑल दोस थिंग्स. और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब एज अ ऑर्गेनाइजेशन तुम एक इंडिपेंडेंट हो गए हो, इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबल आ गया हो, मैं नहीं बोलता बहुत इंडिपेंडेंट हो गया, वेरी 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 स्मॉल ब्रांच वी आर, बट या दैट्स द पावर. फिर वो चीजें जितनी आगे बढ़ जाती है उसमें फिर वो दिखता है कि अगर किसी के साथ कुछ उटपटांग हो जाए या फिर कुछ डिसीजन लेने हैं जो सब लोगों को काम में आ सकते हैं, वो एक दैट वाज वेरी बिग थिंग कि अगर हमको सबके रेट सिमिलर करने, तो वो जो ओवरऑल प्रोफेशन में स्ट्रगल चलता है कि कोई रेट कम करके ले रहा है, ज्यादा करके ले रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए. एक बेटर डेकोरम बना रहे प्रोफेशनल में, वो एक होनी चाहिए. सो या आइडिया वाज फॉर्म. नाउ आई एम डैम श्योर आई मे बी गॉन someday, but idea will idea Varda will shall live forever. Yes. Yeah, because a city like Wardha is not having a branch as such, because Wardha के आसपास ही सावंगी है. There are a lot of people who are studying dentistry, and if they're not having a branch nearby in the city, then they feel like
यार कुछ अधूरा है काइंड ऑफ, बिकॉज yes, yes, डेंटिस्ट yes. दे आर लाइक क्रेजी. आईडीए में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, they just have to go and attend over हाँ, that, workshops and all of that. So nobody is going to like feel bad now because it's there in yes, yes, Varda. yes. Thanks to Exactly, you, exactly. sir. अरे ठीक है. Okay. So, sir, cosmetic dentistry are very fancy word. So, what are your thoughts on this being only a cosmetic dentist in the region? See, cosmetic dentistry, yeah, I'm very much agree with you. Cosmetic dentistry is very fancy word. What people need to Yes. understand that we are underrated our smile to a very large extent. Nobody understands the value of smile. See, we have the people spend their money on their clothes, their skin, their hairs, their makeup, Yeah. but nobody is willing to spend their money on their smile. I'm not saying Yeah. कि smile पे ऐसे खर्चे करने चाहिए, but that is the only thing you are born with, right? Yes. If a lady or a man or if a person is very much handsome looking guy or a very much beautiful lady, but if there is a spacing, if there is a crooked tooth, if there is a overlapping, if there is a discoloration, of the teeth is good, but the gingiva is black, the gums are Yeah, black, yeah. even that, Mhm. even that case, no, everything is fine, but the lips are very thick, even that case, Yes. many things. Okay, so smile is not the teeth. The smile is it constitutes of major part. The entire oral architecture in work in that context, right? Yes. सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में दो चीजें वर्क करती है. एक तो फंक्शनैलिटी होती है बिकॉज टूथ आर मेड टू बी टेक द फूड एंड देन Yes. देयर इज अ एस्थेटिक. नाउ मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, हम एस्थेटिक्स को या ओवरऑल फंक्शनैलिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. ये चीजें हर किसी के साथ होती है, ऐसा नहीं कि एक के साथ ही हो रही है. आई टेल यू वन थिंग. एक दो तीन कुछ दिन पहले की बात है, केस आई थी मेरे पास. That girl was want to take the ortho treatment, right? Okay. And ortho treatment उसमें करनी थी तो उसमें 1 2 3 4 चारों दांत एक्सट्रैक्ट करना था, ऑर्थो एक्सट्रैक्शन, राइट? अब उसका एक्सट्रैक्शन मैंने शुरू किया. अब एक अपॉइंटमेंट जा रही है, मतलब एक अपॉइंटमेंट तो पूरे नहीं निकाल सकते, उसके 3 4 अपॉइंटमेंट्स रहेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए. एंड आफ्टर दैट द ट्रीटमेंट विल स्टार्ट. अब वो लड़की पापा को बहुत ये करके आई है, ऐसा मुझे लगता है कि उसने बहुत कन्विंस किया था कि नहीं पापा मुझे करना ही है एंड ऑल दोस थिंग्स. Now she was doing engineering and she may land up in working some corporates and all those things. What happened was dad was not in that mood. ठीक है? Okay. उनके हिसाब से उनकी लड़की की स्माइल बहुत सुंदर है, ठीक है, अच्छा. और या उनकी लड़की बहुत अच्छी दिखती है या उनका है. और मैं ये नहीं बोलता, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, या इट्स वाज गुड थिंग. मतलब उनका ऐसा था कि एक्सट्रैक्शन करके तुम स्माइल डिजाइन कर रहे हो या ऑर्थो ट्रीटमेंट ले रहे हो या वो चीज कर रहे हो, क्या जरूरत है? कोई कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है. तो अब उनको मुझे मतलब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार वो उनका थोड़ा चालू था. और आई कैन सी दैट देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन द डॉक्टर एंड द फादर, कि नहीं पापा मुझे करना है, कि बेटे बोले एक्सट्रैक्शन क्यों करना पड़ता है, इतनी अच्छी तो स्माइल इतनी क्या खराब थी क्या, ऐसा, ठीक है. एट द फाइनल टाइम इवेंचुअली हुआ ऐसा कि मैंने उनको बताया कि मुझसे रहा नहीं गया. फिर मतलब कि अंकल सुनिए, मुझे पता है कि आपकी लड़की सुंदर है, ठीक है, हर बाप को लगता है कि मेरी लड़की बहुत सुंदर है, और हाँ ये तो है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, हर कोई पापा की परी तो है ही. लेकिन जब हम बाहर जा रहे हैं आउटर वर्ल्ड में, when you go to the corporate, when you meet people, when you go interview, when you take interview, when you Yes. get into the hierarchy of the system, हर कोई पापा की परी बना बैठा है ना. तो भैया, तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी कॉन्शियसनेस रहेगा, अनकॉन्शियस, अगर तुमको ऐसा लगता थोड़ा नर्वसनेस है कि मैं ठीक नहीं दिखती, या कोई लड़का बोलता है कि यार मेरी स्माइल खराब है, या मैं हंसता हूं तो ये खराब दिखता है या वो खराब दिखता है, वो जो कॉन्फिडेंस थोड़ा जो डाउन करता है, वो चीज तुम्हारे कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करती है. Right. ठीक है. तो अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बाय द टाइम द ट्रीटमेंट विल ओवर एंड व्हेन शी गेट दैट स्माइल, दैट कॉन्फिडेंस, वो इवेंचुअली पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है. That is the thing. Right. Like last time I treated one case of the smile designing. It was the, I think, first case in the Varda city. It was pre-wedding smile designing. What I say to it, because Okay. 1 महीने में उसकी शादी थी.
ठीक है। अच्छा। शादी से 1 महीने पहले वो मेरे पास आई और वो बोलती कि सर ऐसा ऐसा है, और लड़की एकदम बहुत सुंदर, मतलब, लेकिन दांतों में स्पेसिंग है, गैप है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उससे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड बाय द Yeah. टाइम आवर ट्रीटमेंट वाज कंप्लीटेड, शी वॉज क्राइंग इन माई चेयर कि मैंने सोचा नहीं था सर कि मैं कभी इतना अच्छे से हंस सकती हूँ। फिर उसकी शादी हो गई, फिर वो हनीमून पे गई, फिर वो घूमने वगैरह गए, एंड फिर वहां के मैंने कुछ, उनने मुझे को फोटो भेजे थे कि सर जस्ट लुक एट द पिक्चर्स। तो अब मैं फोटो में देख रहा हूँ कि वो खुल के हंस रही है, वो बर्फ बर्फ खेल रही है, वो स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं, उनका वो जो चल रहा है। तो और उसके बाद थोड़ा अगर स्क्रॉल करो नीचे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगता है कि 4-5 फोटो शादी के छोड़ के उसके बाद जितने भी फोटोज हैं, उसमें एक में भी उसने स्माइल नहीं किया है, एक में भी उसके दांत नहीं दिखते। सो सिंस चाइल्डहुड शी वाज सच अ कॉन्शियस कि मैं अगर हंसूंगी तो वो स्पेस दिख जाएगी, मैं अच्छे से नहीं दिखूंगी तो दैट इज द थिंग, so that need to be addressed. So I must say, when a dentistry is not like we do what people think, yeah bhai ye dentistry kya hai, no. Dentistry is basically a artistry what a person Yes. do, because if a person don't have that artistic vision, what he can Yes. see and what he know ki I can pull this off about that Yes. person, and what changes it may cause to a person, Yeah. that is the thing that makes us different, I think so. वो एक चीज है। बेसिकली डेंटिस्ट्री को कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है स्पेसिफिकली इन इंडिया, बट आउट ऑफ इंडिया इफ यू कैन सी डेंटिस्ट्री को बहुत ज्यादा वैल्यू है। एंड एज आई हैव सीन हियर, जैसे सावंगी में थी तब तो एक होता था कि क्या एमबीबीएस ही ज्यादा है, बीडीएस कोई नहीं है, कुछ नहीं करते ये लोग है ना, होता है। बट जितना मैंने स्टडी किया है ना, आई गॉट रियली कि क्या है डेंटिस्ट्री, माइन्यूट चीजों को डिटेल प्रेजेंट करना, पेशेंट को सेटिस्फाई भी करना है कि वो डिटेल्स काफी अच्छे हैं, व्हेन दे लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर एंड दे फील ओके, या दिस लुक्स रियल, फेक नहीं दिखता है कुछ भी। एंड स्पेसिफिकली द टूथ कलर, ओके मेरे को एक कंसल्टेशन लेना है आपसे, सी आई ऑल्सो हैव अ क्रिकेट टूथ, ओके दिस वन, एंड आई ऑलवेज प्लान कि ओके आई हैव टू गेट इट डन, बट समटाइम्स आई, जैसे मैं परी ना पापा की, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट, सब बोलते हैं कि yeah, it's like that. तो मैंने भी बहुत बारी बोला कि यार मेरे को करना चाहिए, तो ही इज लाइक कि क्या जरूरत है ना, यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल, तो वो क्रिकेट टूथ लाइक इट्स लाइक अ सिग्नेचर, लाइक इट्स जुई, ये जुई का फीचर है। बोला ऐसा थोड़ी होता है यार, इसको भी ठीक करना पड़ता है। सो व्हेन वी सी फॉर वन सिंगल टूथ, उसका पूरा फाउंडेशन एक वो अकेले डेंटिस्ट के पास होता है, उसको किस तरीके से बनाना है, हर छोटी से छोटा डायमेंशन को इधर उधर नहीं कर सकते, वो बहुत गंदा दिखता है, और फिर अगर वो गंदा हो जाता है तो पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। सो इट्स बेसिकली डेंटिस्ट्री का काफी मतलब बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है देखा जाए तो, बट लोगों को इतना सही दिखता है कि यार तुम लोग तो सिर्फ गम्स के डॉक्टर हो, दांत के डॉक्टर हो, क्या ही तुम्हारा है, हम लोग तो पूरा बॉडी का करते हैं स्टडी एंड ऑल ऑफ दैट। बट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज टूथ पेन इज द सीवियर पेन दैट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। टूथ एक इज अ वेरी, लाइक मैं बोल नहीं सकती, मेरे को अभी तक हुआ नहीं है, आई डोंट वांट टू फील दैट, बट डेंटिस्ट्री इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट्री, सो yeah, it is yes, and you are an artist and I am also a bit of an artist. yes, definitely. Yes, so I would love to visit your clinic, sir, one day. I want to sure, definitely, if you're just willing to like give me a chance to assist or see one of your cosmetic surgery or anything, whatever you do, just give me a chance. This is what happening. I'm just adding to the point. This is what happening right now in the pandemic, what I've experienced. Yeah. See what happened now, all the people who was working in the metro cities or the bigger cities, or not in the Varda, during the pandemic they have come to the Varda. Okay, now everything is online. Now they are getting in the online and all, they're getting the payment for that. Now there was a perception कि नहीं ये चीज करनी है तो हमको यही जाना पड़ेगा, ये चीज करनी है तो हमको यही जाना पड़ेगा, मेट्रो में ही मिलना है। अब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी और द टाइम हैज बीन इवॉल्व, एवरीथिंग हैज बीन चेंज, and most of best part of it, a person who is running a clinic
has Yeah. its reflection what how it runs it. अगर कोई Yeah. प्रैक्टिशनर सोचता है कि नहीं 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 मैंने जिंदगी में स्माइल डिजाइनिंग नहीं करनी, तो वो स्माइल डिजाइनिंग नहीं करके भी जिंदगी काट सकता है अच्छी खासी। Right. लेकिन कोई सोचता है कि नहीं मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना, मतलब मुझे मेरा वर्किंग एरिया को और ब्रॉड भी करना है, मेरी स्पेशलिटी भी तैयार करनी है और उस टाइप में एनवायरमेंट तैयार करना है। तो ये Right. सारी चीजें किसी के पैशन के थ्रू अगर होती होंगी तो अब वो प्रमोट करे, राइट? व्हाट व्हेन आई डू द माय स्माइल डिजाइनिंग केसेस, initially when I used to do the cases, when I try to analyze the thing, I try to improvise with every single person. Now at this point of time I know what I can do, what I cannot do, what can be Yes. done, what cannot be done. It मतलब ये सारी चीजों का जो इंटरेक्शन होने के बाद वो जो सामने आता है, वो चीजों को मैं अगर पहले से परसेप्ट कर लूं तो मैं वो चीज आराम से पुल अप कर सकता हूँ। होना क्या Yes. प्रॉब्लम क्या होता है कि पीपल वेयर लाइक ये होगा कि नहीं ना, इट कैन हैपन। इवन अगर Yeah. कोई डेंटिस्ट अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स अपने कलीग सुन रहे होंगे, वी आर नीड टू डू समथिंग बियॉन्ड द बेसिक प्रैक्टिस if you want to Yes. become a better dentist. That's what I say. It is the balance between the what your perception is, what your lab is gonna do, the diagnostic purpose and all those things. और बहुत लोगों जहाँ पे जब पैंडेमिक में आए हैं तो दे आर डूइंग द थिंग लाइक दे आर टेकिंग द ऑर्थो ट्रीटमेंट, दे आर डू वांट टू डू, क्योंकि घर पे बैठे पेमेंट तो ऐसे ही आ रहा है, अब चीजें कर लो। एक साल के लिए घर पे बैठना तो ऑर्थो ट्रीटमेंट कर लो या स्माइल इंप्रूव कर लो या ये चीजें कर लो। Yes. पीपल आर डूइंग इट। आई एम गेटिंग सो मच Yes. ऑफ पेशेंट राइट नाउ बिकॉज दे आर इंक्वायरी की सर हम कर सकते हैं। बोला हाँ एक टाइम पीरियड रहता है कि हाँ अब कैसा हो कि कुछ कुछ लोगों को आना जाना करना पड़ता है, महीने में एक बार जाना है या 2 बार रिपोर्ट करना है, ऐसा ऑल दोस थिंग्स, वो सारा देख के थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, लेकिन वो हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। दैट इज द थिंग दैट हैज बीन चेंजिंग राइट नाउ। Yeah. Big change. या Yeah. So can you tell me, sir, what are you actually grateful for? Like इतना बड़ा journey, इतना सारा life आपने देखा है. Can you just tell me what are you actually grateful for? ग्रेटफुल के बारे में अब क्या बोले? आई एम ग्रेटफुल फॉर मेनी थिंग्स, बट आई थिंक व्हेन इट इज सेड कि अगर कोई मुझे अभी पूछे कि व्हाई whom you thank to, तो मुझे वो स्नूप डॉग का चीज आती है। व्हाट इज सेड कि आई वांट टू थैंक मी, Yes. I want to thank me to believing in me. I want to thank Yes. me that for all the hard work, the dedication, the planning, implementation, and the Yes. failure. But for most of all, the family, friends, yes, juniors, seniors, guiding force. And now Yes. the things has been changes right now. To see the Yes. everybody's diversify and the knowledge का source अब change हो गया है। पहले चीज सिर्फ कॉलेज से मिलती थी या कुछ कोर्सेज से मिलती थी, अब ऐसा नहीं है। अब चीजें टिप ऑफ द फिंगर हो गई है, हम मोबाइल पे भी देख लेती है वो चीज। सो अभी द्रोणाचार्य बहुत सारे हैं, तुम्हें हाँ. एकलव्य बनने की जरूरत है। अब तुम बोलोगे Yes. कि नहीं मैं आश्रम में जाके रहूंगा, उधर ही खाऊंगा, उधर ही पीऊंगा, फिर वहीं पे सीख के आऊंगा, ऐसा नहीं होता। टाइम हैज चेंज। Yes. दैट इज द Wow. थिंग। Yes. Can you just like this is like the last question to this session now. या Okay, so I would love to know, it's like a feedback. I always ask this question to all of the guests who I invite on this talk show. Can you say a few words about the Legit Talks series? Like, how did it help you? See, I have been following the Legit Talk since the session 1, okay? And what I have Wow. realized, and other people, if they are coming on the Legit Talk or they're willing to coming on the Legit Talk, or they're seeing the Yes. Legit Talk और बोलते कि कभी हम भी Legit Talk में जाएंगे या ऐसा कोई किसी के साथ वीडियो कॉल पे होगा, Yes. I think the best part what from Legit Talk, no one is a superhuman. Yes. नो वन इज सुपर ह्यूमन। हर किसी को फेलियर आना है, हर किसी को फेल से जाना है, वो चीज होनी है, हर कोशिश करते रहना चाहिए। एंड व्हेन यू डू द स्टोरी you understand that very little things are there which has to be done and which make eventually the entire difference. Like Yes. I've seen one of the Legit Talk, वो कहता था कि मुझे पता था कि मेरा ये है, तो मैंने अभी से थोड़ा करना चालू किया, फिर मैं अभी से थोड़ा कर रहा हूँ या उसके लिए कर रहा हूँ। वो सारी चीजें एक छोटी छोटी चीजें के बाद जो difference है,
और वो जो जर्नी को बताई उसमें एडिट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बता तो मुझे बोले कि सर आपने जिंदगी में क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जी रहे हैं। तो यहाँ पर Sir, I think your Bluetooth is not connected. या राइट, am I audible? Yes, yes. हाँ, Continue. सो ऐसा होता है, लेकिन अब जब लेजिट टॉक कर रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया है. So I must say to all the people, if you are coming or planning to come, or you are thinking about if you are coming, what can happen, all those things, it's very fun thing to do. It's no serious. You actually recollect all the memories. Otherwise, I haven't Yes. opened that book since I've get into the city. I've covered it. Yes. I don't want to get it dirty and all those things. मुझे लगा कि अब वो Yes. दिखाना चाहिए, तो मैंने लगा चलो, अब मैंने भी देखी, बोला या आई वांट दैट, आई सॉ विद दिलशा सिंह फेस टू फेस, वरना Yes. 2070 की बात अभी फेड आउट हो जाती है. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द लेजिट टॉक, एंड द एंकर इज टू गुड. She makes it Thank things you. very easy. Really, you make it very easy. You have very Thank particular pattern or a set of the questions, and I love it about it. Keep the good Thank work, you please. so much, sir. Thank you so much, sir. I am really like काफी टाइम हम लोगों ने इस चीज पे बात की है, and I hopefully I say that people who are watching and who will be watching after I post this on IGTV, उनको एक Yeah. थोड़ा सा फील होगा कि मेरे पास ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक मैंने क्या किया यार, मैंने आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डोंट हैव सच कॉन्फिडेंस टू से थिंग्स अबाउट माय सेल्फ एंड वगैरह वगैरह. एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको बताती हूँ कि यार हर एक की जर्नी काफी अलग होती है. इट्स नॉट लाइक बड़े इंसान को ही लेना जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है या जर्नी बड़ा है. इट डजंट मीन दैट कि वही सब कुछ, मतलब वो आदमी सब कुछ करके बैठा है, तुमने कुछ नहीं किया है. एवरीवन हैज अ स्टोरी. सो सबको ही अपने लाइफ में अलग तरीके से यूनिक है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने मेरा ये रिक्वेस्ट जो था वो आपने एक्सेप्ट किया. आपने इस चीज पे काफी मेहनत उठाई. हम लोग एक हफ्ते से इस चीज पे काम कर रहे हैं. काफी टाइम से हम लोग इस चीज पे लाइक क्या इनोवेट करना चाहिए, कुछ नई चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेट ऑफ क्वेश्चंस, और फिर उस पे Yes, कैसे yes. बात करना है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो इतना काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आपसे मुझे. एंड आई फील मोर बूस्ट कि हाँ मैं अभी आगे और अच्छा कर सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, और मेरे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सपोर्ट किया और उस तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई. मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ आपसे. एंड आई विल ऑलवेज से दैट कि या आई एम अ डेंटिस्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट. So I already Yes, yes. have an artist with me, my senior sir. कुछ भी तकलीफ Yes, yes, होती है, अगर definitely. I feel low or some or the other way, I'll just contact you and I'll ask you, sir, यार मेरे को कुछ Anytime, motivation anytime, दे दो. anytime, always. So you are Anytime. always there. Yes sir, thank you so much sir. And I'm very like, Okay. sad now कि session खत्म करना पड़ेगा. But we can have certain topics जिस पे हम काफी बात कर सकते हैं. Sure, I sure, think sure. इसमें कोई cosmetic issue नहीं dentistry है. पे हमको बात करना चाहिए. Yeah, What do you definitely. think? Will do. Will do. Will do. Yeah. I have So some not cases. only I'm cosmetic doing the dentistry, documentation in it. Yeah. कॉस्मेटिक्स लाइक एस्थेटिकली फेशियली कैसे रिप्रेजेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स एंड सर्टेन बॉयज हु हैव एक्सपीरियंस समथिंग रॉन्ग ऑन देयर फेस एंड बर्थ मार्क्स एंड एसिड अटैक्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक ये टॉपिक हमने एक और बार लेना चाहिए. वी शुड टॉक अबाउट एस्थेटिक्स एंड द कॉस्मेटिक. Definitely, definitely. और अच्छा थैंक करेंगे. यू सो मच. यस बिल्कुल. चलो चलो. Keep You the just good keep work, Joey, supporting. and good luck for the all the coming sessions. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Thank you Any so need, much. I'm going to be there. Fine, fine. Yes. Bye bye. Thank you so much, sir. Guys, I'm so sorry. Lights बीच बीच में आना जाना कर रही थी and it was like a glitch. But yeah, I tried to keep on the conversation in a way like जो भी viewers है उनको कोई problem नहीं हुई होगी, I hope. And the people who have asked questions, Akansha, I think the question is more clear now. The answer has been given by sir. And I really see you in a way that you would be helping if people are suffering from certain that specific problem. You can just guide them and tell them.
And I hope this session was really helpful because इसमें COVID and post-COVID and preventive measures when you visit to a clinic and when you visit to any hospital. So all these things were covered in this session, and really, guys, thank you so much for always being there and sticking up to the session. I'll be coming with the next session with the next good personality, hopefully Saturday or a Sunday, as always. So really, thank you so much, and I'm going to see you next time soon. Bye. Namaste.